باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنے تمام شرکائے محفل کو امریکہ سے تبسم موتی نلوی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ وعلیکم سامعین، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب تالیوں کی گونج میں اپنے واجب التعظیم مہمان گرامی احساس شخصیت محترم جناب ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کا استقبال کریں۔ سامعین، تقریب کا آغاز رب کائنات کے عظیم تر نام اور اس کے عظیم تر کلام سے کرنا چاہیں گے، جس نے یہ کائنات تخلیق فرمائی اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوق کا معزز درجہ عطا کیا۔ پرانی آیات کی برکات سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم جناب تنویر پھول صاحب۔ بہت شکریہ۔ اور یہ آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تلاوت سماعت فرمائیے سورہ بقرہ آیت 255، جس کو عام نام ہے آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت 255 یہ سماعت فرمائی اور اس کا منظوم مفہوم پیش ہے۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، وہی تو ہے وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ آیت 255 آیت الکرسی کا مفہوم۔ نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہمدم، نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہمدم، وہی زندہ وہی قائم اسی کا نام ہے ارحم، وہی زندہ وہی قائم اسی کا نام ہے ارحم۔ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس پر اونگ کا غلبہ، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس پر اونگ کا غلبہ، زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ سب کا سب اس کا، زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ سب کا سب اس کا، لہو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ سب کا سب اس کا، کس کو تاب جو آگے سفارش کر سکے اس کے، کس کو تاب جو آگے سفارش کر سکے اس کے، بجز وہ ذات جس کو حاکم مطلق اجازت دے، بجز وہ ذات جس کو حاکم مطلق اجازت دے۔ وہ ماضی اور مستقبل کی سب باتوں کا ہے عالم،
وہ ماضی اور مستقبل کی سب باتوں کا ہے عالم، ہمیشہ سے ہے وہ قائم، ہمیشہ ہے وہی حاکم، ہمیشہ سے ہے وہ قائم، ہمیشہ ہے وہی حاکم۔ احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، آیا ہوتی ہے بس وہ چیز جس میں اس کی ہو مرضی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، آیا ہوتی ہے بس وہ چیز جس میں اس کی ہو مرضی، اسی کا عرش حاوی ہے زمین اور آسمانوں پر، اسی کا عرش حاوی ہے زمین اور آسمانوں پر، کہ اس کے تخت کی وسعت ہے غالب سب جہانوں پر، کہ اس کے تخت کی وسعت ہے غالب سب جہانوں پر، نگہبانی میں اس کی چل رہا یہ نظم عالم ہے، نگہبانی میں اس کی چل رہا یہ نظم عالم ہے، وہ بے شک سب سے اعلیٰ ہے، وہ بے شک سب سے اعظم ہے، وہ بے شک سب سے اعلیٰ ہے، بے شک سب سے اعظم ہے، وہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ نماز فرمانے کا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے محترم جناب ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حمد الہی کی سعادت حاصل فرمائیں۔ یہ حمد ہے جو میں نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے لکھی تھی، تو اس میں اس کا امپورٹنٹ جو ہے وہ کچھ ردیف ہے۔ پگھل جاؤں تیرا ہو کر ذرا اچھا نہیں لگتا، پگھل جاؤں تیرا ہو کر ذرا اچھا نہیں لگتا، ہزاروں مہر ہو سر پر ذرا اچھا نہیں لگتا، ہزاروں مہر ہو سر پر ذرا اچھا نہیں لگتا، تیرے ہر کام میں ہے مصلحت پر تیری دنیا میں، بے شک تیرے ہر کام میں ہے مصلحت پر تیری دنیا میں، کوئی بھوکا کوئی بے گھر ذرا اچھا نہیں لگتا، تیرے ہر کام میں ہے، تیرے ہر کام میں ہے مصلحت پر تیری دنیا میں، کوئی بھوکا کوئی بے گھر ذرا اچھا نہیں لگتا، جھلستے راستے ہو چل چلاتی دھوپ ہو میں ہوں، جھلستے راستے ہو چل چلاتی دھوپ ہو میں ہوں، کیا کہنے نہ ہو سر پہ تیری چادر ذرا اچھا نہیں لگتا، جھلستے راستے ہوں جھلستے راستے ہو چل چلاتی دھوپ ہو میں ہوں، نہ ہو سر پہ تیری چادر ذرا اچھا نہیں لگتا، نہ ہو سر پہ تیری چادر ذرا اچھا نہیں لگتا، ذرا اچھا نہیں لگتا، میرے کشکولے جام ڈال دے تسکین کی 2 گھڑیاں، میرے کشکولے جام ڈال دے تسکین کی 2 گھڑیاں، میں دستک دوں کسی در پر ذرا اچھا نہیں لگتا، میرے کشکولے جام ڈال دے، میرے کشکولے جام ڈال دے تسکین کی 2 گھڑیاں، میں دستک دوں کسی در پر ذرا اچھا نہیں لگتا، یہ طوفان حوادث ریزہ ریزہ کرنے والا ہے، یہ طوفان حوادث ریزہ ریزہ کرنے والا ہے، بکھر جاؤں تیرا ہو کر ذرا اچھا نہیں لگتا،
क्या बात है, बहुत 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 खूब डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा। बहुत सुंदर जनाब, बहुत یہ طوفان حوادث، ہوں، یہ طوفان حوادث ریزہ ریزہ کرنے والا ہے، ہوں، بکھر جاؤں تیرا ہو کر ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا نہیں، کیا کہنا، کرم کی بارشوں واہ، کا، کرم کی بارشوں کا اے خدا انکار سے، انکار کس کو ہے؟ کرم کی بارشوں کا، اے خدا، کرم کی بارشوں کا اے خدا انکار کس کو ہے؟ کوئی دھرتی رہے بنجر ذرا اچھا نہیں لگتا، کیا واہ کہنا، کوئی واہ، دھرتی کوئی ہے زمین ہے بنجر ذرا اچھا نہیں ذرا لگتا، اچھا بہت نہیں بہت لگتا۔ کیا کہنا، کرم واہ، کی بارشوں کا، کرم کی بارشوں کا اے خدا انکار کس کو ہے؟ کوئی دھرتی رہے بنجر ذرا اچھا نہیں لگتا، کیا گھر جاؤں تیرا ہو کر ذرا اچھا نہیں لگتا، ہزاروں مہر ہو سر پر سبحان ذرا اللہ، سبحان اللہ، اچھا کیا نہیں۔ کہنا، سبحان اللہ، بہت سبحان سندر اللہ، صاحب، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت خوب، بلغ العلا بکمالہ، بہت خوب، زبردست، واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع قتالہ، صلوا علیہ صلو وآلہ۔ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ بلائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت کے لیے میں دوبارہ دعوت کلام دوں گی آج کے معزز مہمان ڈاکٹر محمد شیخ اقبال صاحب کو کہ آپ نعت کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ یہ ذرا میں گنگنانے کی کوشش کروں گا۔ جی جی ارشاد جی کیجیے۔ ضرور ضرور ضرور۔ چلو بہت اچھی بات ہے۔ میرے لب پہ نعت رسول ہے، صلی اللہ میری علیہ خلوتیں میری جلوتیں، میرے سبحان لب اللہ۔ پہ، میرے لب پہ نعت رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میری خلوتیں میری جلوتیں، میں قسم خدا کی مزے میں ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی میں آواز قسم نہیں آ رہی ہم خدا تک۔ کی، آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے آواز نہیں جی علی، آواز آ آ رہی رہی ہے، ہے؟ شاید آپ کے کوئی مسئلہ ہو، آواز ٹھیک ہے۔ ہاں، آواز بالکل ٹھیک آ میں رہی ہے۔ قسم جی جی، میں قسم خدا کی مزے میں ہوں، میرے ہاتھ ٹھیک ہے۔ لگ گئی دولتیں، یہ کیا شعر تھا۔ میرے کیا لب پہ نعت رسول ہے، صلی اللہ علیہ میری وسلم، خلوتیں میری جلوتیں، واہ، میں قسم خدا کی مزے میں ہوں، میرے واہ، ہاتھ لگ گئی دولتیں، دولت، واہ، میرے سر پہ واہ، شوق کا صاحبہ، میرے سر ذات پہ گرامی، شوق کا صاحبہ، صاحباں واہ، میرے سر پہ، میرے سر پہ شوق کا صاحب، صاحبہ، کڑی دھوپ ہے تو ہوا کرے، واہ واہ، میرے سر واہ، پہ، بات ہے، میرے سبحان سر پہ شوق کا صاحبہ، کڑی دھوپ ہے تو ہوا تو کر، ہوا کرے، اے نظر میں طیبہ کے بامدر، اے نظر واہ، میں طیبہ کے بامدر، کوئی چیز ہے یہ مسافتیں، کیا کہنا، اے واہ نظر واہ، میں طیبہ کے بامدر، کیا کہنے، کوئی واہ چیز ہے یہ مسافتیں، کیا میرے کہنا، سر پہ واہ شوق کا صاحبہ، کڑی واہ، دھوپ ہے تو ہوا ہوا کرے، کیا کرے، کہنا، کیا کہنا، سبحان خوب ہے اے تو ہوا کرے، نظر میں ہوا کرے، طیبہ کی بامدر، کوئی چیز واہ ہے یہ مسافتیں، کیا میرے کہنا، سارے حرف تھے بے زبان، میرے سارے حرف تھے بے زبان، میری واہ، شاعری تھی فقط گماں، کیا میرے سارے حرف کیا تھے کہنے، بے زبان، میری شاعری تھی فقط گماں، تیری مدحتوں کا کرم ہے یہ، تیری مدحتوں کا کرم ہے سب
یہ वाह فساتیں یہ بلاغتیں، کیا کہنا ہے، میرے فساد سارے حرف تھے، میرے سارے حرف تھے بے زباں، میری شاعری کی فقط گماں، تیری مدحتوں کا کرم ہے سب، یہ فصاحتیں یہ بلاغتیں، کیا کہنا ہے، تیری یاد میں شہد و جہاں، تیری میرے یاد میں قلب و شہد و جہاں کو، شعر ہے، تیری یاد میں شہد و جہاں، میرے قلب و جہاں کو ملی امان، نہ فلک سے کوئی گلا رہا، نہ فلک سے کوئی گلا رہا، نہ زمین سے کوئی شکایت، کیا کہنا تیری یاد میں شہد و جہاں، میرے قلب و جہاں کو ملی امان، نہ فلک سے کوئی گلا رہا، نہ زمین سے کوئی شکایتیں، یہی چند اشعار واہ تھے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ سامعین کرام، آمین گلوبل آمین۔ رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے تحت گلوبل ٹی وی میں آج ہم آپ کی ملاقات ادب کی احساس ہستی اور پاکستان کی تاریخ ساز ہستی سے کروانے جا رہے ہیں، محترم ڈاکٹر جناب شیخ اقبال صاحب۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے انسان کے روبرو بیٹھے ہیں جو آنکھوں کے نور بصارت سے نہیں بلکہ دل کے نور بصارت سے دنیا کو دیکھتا ہے اور اپنی بصیرت افروز سے ہی دنیا کو جانچنے اور پرکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے پکارے، منزل تجھے۔ واہ منزل تجھے بہت خوب۔ واہ، محترم ڈاکٹر محمد شیخ اقبال کی مسلسل جدوجہد، انتھک رود و شب کی محنت، بلند عزم و حوصلہ دیکھ کر منزل آخرکار ان کو خود ہی پکار لیا۔ آپ نے 15 مارچ 1945 میں بامقام کرنال مشرقی پنجاب میں جنم لیا۔ آپ کی رہائش شاہینوں کے شہر سرگودا میں ہے، اسی لیے آپ اقبال کے شاہین کی طرح قصر سلطانی کے گنبد پر بسیرا نہیں کرنے کے بجائے بلند و بالا پہاڑ کی بلندیوں کا مسکن پسند فرماتے ہیں۔ آپ وہ احساس ہوتی ہیں جو ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایا شاعر، ادیب، نقاد، مترجم، افسانہ نگار، انشائیہ نگار، مترجم، سماجی کارکن، فری لانس براڈ کاسٹر بھی ہیں۔ ہمارے معزز مہمان نے اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں ماشاءاللہ ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور ماشاءاللہ سے آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ پہلے نابینا پی ایچ ڈی کرنے والے اور پہلے نابینا لیکچرار بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ سامعین، آپ سابق پروفیسر، بہت شکریہ، آپ سابق گورنمنٹ کالج سرگودا، سابق پروفیسر یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور، ایڈیٹر ماہانہ سفید چھڑی سرگودا اور پاکستان ایسوسی ایشن بلائنڈ سرگودا کے صدر ہیں، اور علمی اور ادبی تنظیم بزم فکر و خیال کے بھی بانی اور صدر ہیں۔ سامعین، آپ کی ادبی کارناموں پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی 24 تخلیقات منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ آپ نے نثر اور نظم سے برابر کا انصاف رکھا ہے۔ آپ کی 10 نثری تصانیفیں اور 10 شعری مجموعہ کلام ہیں اور 4 کتابیں تنقید پر مشتمل ہیں اور ایک آپ کی خود نوشت ہے۔ آپ کی ادبی اور ادبی خدمات پر صدارتی ایوارڈ تمغہ امتیاز بھی آپ کو حاصل ہوا۔ آپ کے پہلے شعری مجموعہ ساحل تشنا لپ نے سرگودا تعلیمی بورڈ کے اساتذہ کی شعری تخلیقات کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب نابیناؤں کی ملگیر تحریک سے وابستہ رہے، محکمہ سماجی و بہبود کی جانب سے آپ کو گولڈ میڈل بھی حاصل ہوا ماشاءاللہ۔ مرکزی وزارت ثقافت نے آپ کی زبان و ادب کی خدمات کے اعتراف میں توصیفی صنعت سے آپ کو نوازا۔ آپ نے اسکاؤٹنگ کا صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ بھی بے پناہ شاندار رہا۔ آپ نے ایم فل میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا پی ایچ ڈی کے جو مقالے کا عنوان تھا وہ تھا دا امپیکٹ آف برٹش پوئٹس اوور اقبال۔ جی ماشاءاللہ سے آپ کی تمام
तो देख के आज अंदाजा होता है कि आज हम लोगों के सामने कोई किताबी या फिल्मी हीरो मौजूद नहीं है, बल्कि एक जीता जागता ऐसा हीरो मौजूद है जिसकी अज़मत को सलाम करने के लिए हम सब लोग माशाल्लाह से जमा हुए हैं। और हमारे बड़ा साथ करम है, बड़ा करम। जी माशाल्लाह, आपके अदबी कारनामों को हम सब, जितना भी हमारा जी। पैनल बैठा है, सब आपकी अज़मत को सलाम करता है। और जिस तरह से आपने अपने कामों को अंजाम दिया, और ख़ास तौर पे एक जो कहना कहना चाहिए कि हमारे लिए तो आप एक हीरो और एक ऐसे बुलंद मुकाम पे आप हमें नजर आ रहे हैं, जिसका हम सब आपके दिल से गहराइयों से आपका खैर मकदम भी करते हैं। और आपसे कुछ सवालात भी पूछेंगे। सवालात के सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी, ताकि हम आपकी जिंदगी का पूरा एक जो कन्वेंस है, मतलब पूरा आपका जो है वो उसको हम सामीन के सामने पेश करें कि आपने जिंदगी में जो जद्दोजहद की और जो कुछ आपने हासिल किया, वो कैसा सफर था आपका? जैसे मेरा सबसे सवाल यही होगा कि आपकी जो इब्तिदाई ज़िंदगी है, यानी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो नामहरूमी है बिनाई की, ये आपकी पैदाइशी नामहरूमी थी, या आप पैदा होने के कुछ अरसे तक आपने दुनिया को देखा? मैं बड़ा ममनून हूँ आपका कि आप मुझे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, और मुझ में और हौसला पैदा हो। और मुझे महसूस ये हो रहा है कि मुझे तो और बहुत कुछ करना चाहिए था, ताकि मैं यहाँ आपके सामने डिजर्व कर सकता वो तमाम चीजें। नहीं, नहीं, 4-5 माशाल्लाह। साल 6 साल तक तो 4-5-6 साल तक तो मुझे रोशनी ने धोखा नहीं दिया, अच्छा। बस आंख मचोली खेलती रही। 7-8 साल की उम्र में ऐसा लगा कि अंधेरा ही अंधेरा था, कोई रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था, बिल्कुल बिनाई खत्म हो गई, साथ खेलने वाले दोस्त गायब हो गए। यार लोगों ने वालिद साहब को कहा, देखा तुमने कोई पाप किया था जो तेरे बेटे के सामने आ गया। और मेरा वालिद जो थे, एक छोटे से स्कूल में टीचर थे, खुशाब, एक छोटा सा इलाका जहाँ कोई बमुश्किल मैट्रिक भी करता था। कुछ लोग होंगे जिन्होंने मैट्रिक किया होगा, नाबीना तो कम से कम कोई वहां था नहीं। छोटा सा शहर, एक वालिद जिसके 6 बच्चे, जिनमें से 4 बच्चे नाबीना, 4 बच्चे नाबीना, और आमदनी इंतहाई महदूद। और इसके बावजूद उनको को जाने, हाँ, एक रात को वो उठे, घर से बाहर जाने लगे। वालदा ने कहा कि तुम्हारा बाप कहीं जा रहा है। हमने रोका। उन्होंने कहा, मुझे जीने का कोई हक हासिल नहीं है, खुदा ने मुझसे जीने का हक छीन लिया है। ये एक इंसान कहता है जो मायूसी में होता है। वैसे तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मैं साथ ही एक दरियाए जेलम बहता था, मैं वहां जाकर डूबना चाहता हूँ, बस तुम्हारा अल्लाह हाफिज। मैं उस वक्त कोई 9 साल तक, मुझे नहीं मालूम उस वक्त मुझे खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा था या मेरे अल्फाज मेरी रहनुमाई कर रहे थे, कि मेरे वालिद साहब ने अपने मजमून में लिखा भी। आवाज रुक गई। इकबाल साहब की आवाज रुक गई। अब क्या जी होगा? डॉक्टर साहब, अब्बा आपकी जी, आवाज खुदकुशी आप नहीं करेंगे? कुछ क्लियर है? आज आवाज आपको आ रही है क्या? जी आ रही आ रही। आवाज क्लियर आ रही है? वालिद साहब की बात आपको समझ आ गई जी कि वो खुदकुशी जी। करना चाहते थे इस मायूसी की वजह से। लेकिन फिर हौसला देने, जो हौसला दे लेता है वो हौसला दे भी देता है। बेशक। और फिर होता ये है, जितना बड़ा चैलेंज होता है, अगर उसका उतना ही बड़ा रिस्पांस हो तो चैलेंज अपनी कुव्वत खो बैठता है। मुझे जब मेरे दोस्त छोड़ गए और मेरे रिश्तेदारों ने भी बेरुखी इख्तियार करना शुरू कर दी, और कभी कभी झुंझलाहट में मेरी माँ, वो मेरे वालिद कहा करते थे, बस अंधे बच्चे जने हैं तूने, और माँ रो पड़ती थी। ये मैं
उनका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर जगह पहुंचे ये सूरत हाल क्या होती है। जी जी मैंने कोशिश कैसे की, सूरत हाल क्या थी, इट वाज सो टेरेबल दैट वन कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन फिर कोई रास्ता भी नहीं था, मुझे एक मदरसे में दाखिल करा दिया गया। मदरसे में एक साहब मुझे एक आयत का सब दर्स दे गए और चले गए। 4 घंटे के बाद आए, मैं तो पागल हो गया, अकेला बैठा बैठा। घर आकर वालिद साहब को कहा कि वालिद मोहतरम मैं अब उस मदरसे में नहीं जाऊंगा, मेरा मुझसे तन्हा नहीं बैठा जाता। फिर जो मुश्किलात देता है वो रास्ते भी निकालता है। बेशक बेशक। हमें कहीं से मालूम हुआ कि लाहौर में एक नाबीनाओं के लिए स्कूल है जहां नाबीना बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे लिए एक इंकशाफ था, हमें मालूम नहीं था। खुशाब छोटा सा कस्बा था एक, जहां कोई 2-4 लाख लोग होंगे या शायद इससे भी कम, किसी को कुछ मालूम नहीं था। उस लाहौर स्कूल में मुझे दाखिल करा दिया गया, मेरे छोटे भाई को भी दाखिल करा दिया गया। वहां पढ़ाने वाले बिना लोगों के साथ नाबीना भी थे और पढ़ने वाले नाबीना थे। वो नाबीना, मुझे नाबीना नजर ही नहीं आते थे। दौड़ते थे, भागते थे, खेलते थे, खाते थे, छलांगे लगाते थे, गाने गाते थे सारा दिन, वो पढ़ते भी थे। मैंने कहा मुझे क्या हुआ, मैंने भी गाना गाना शुरू कर दिया, छलांगे लगाना शुरू कर दी। एक उम्मीद लौट आई, तमन्ना लौट आई, आरज़ू लौट आई। मौत चली गई, जिंदगी वापस आ गई। तो वहां हमारे साथी जो नाबीना, आर यू फॉलोइंग प्लीज? आप आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये बड़े गौर से सुन रहे हैं आपकी। हजार इंटरनेट की प्रॉब्लम है उनके पास। आपके आप हजारों मैं बता ये रहा हूं कि जिंदगी में किस तरह से मुश्किलात लोगों को आती होंगी और आती हैं, और उसका कितने लोग हैं जो ख्याल रखते हैं। बहरहाल मैं लाहौर चला गया, नाबीनाओं को देखा, खेलते हंसते, और ग्रामी कदर वहां मुझे एक बार दोबारा नाबीना दोबारा बिनाई मिल गई। मैं कहता हूँ लाहौर साइट वाज द साइट ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ फोर्जिंग अहेड, ऑफ थिंकिंग दैट नथिंग हैड बीन लॉस्ट। तो वो मुझे एक उम्मीद पैदा हुई, और जब वो उम्मीद पैदा हो गई तो मेरे वालिद साहब की परेशानी भी जाती रही, छोटे भाई की परेशानी भी जाती रही। मैंने पहला इम्तिहान मैट्रिक का दिया और फर्स्ट डिवीजन से मैंने हासिल की। उसके बाद बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी झोली थी अल्लाह के इनामात। मेरी दुआएं थी, मेरे बाप की वालिद की दुआएं थी, और अल्लाह का फजल था। मैंने एमए तक पोजीशंस हासिल की, स्कॉलरशिप्स हासिल किए, इनामात हासिल किए, और कामयाबियां ही कामयाबियां हासिल की। माशाअल्लाह। जब मैंने एमए इंग्लिश कर लिया तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने 5वीं पोजीशन हासिल की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी उस वक्त पूरे पंजाब की एक ही यूनिवर्सिटी होती। और अब जी, और हमारे अपने कॉलेज में फैसलाबाद से मैंने किया था एमए अंग्रेजी। मैं वहां मैंने फर्स्ट क्लास हासिल, टॉप किया था यूनिवर्सिटी में। शख्स था जिसने कोशिश की थी कि अब मुझे जॉब करना चाहिए, नाबीना मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हारे आगे से लड़के भाग जाएंगे और तुम पढ़ाओगे कैसे? अरे नाबीना को भी पढ़ाया करते हैं। मैं कहता हूँ अजीब अजीब सवाल करते थे। अच्छा तुम खाना कैसे खाते हो, तुम्हें ख्वाब आते? जैसे मैं इंसान नहीं था। गोया एक उज़्व जाया हो गया, वह इंसान खत्म हो गया। ये हमारा माशरा था। 19 कब की बात है ये, 1950-55 की।
1950-55 کی بات ہے. تو پھر میں نے انٹرمیڈیٹ عام کالج سے کیا. بہت سے انعامات لیے, لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس لسٹ کہیں میں نے بھجوائی بھی ہوئی ہے. میں نے 6 فرسٹ پرائزز ایف اے میں حاصل کیے. اور ایک کمال کی بات یہ کہ ایف اے جب میں نے کیا تو وہاں بی اے کا کالج نہیں تھا. میرے والد صاحب نے ٹرانسفر کروا لی, ساری فیملی کو سرگودا لے گئے. سرگودا میں بی اے کیا میں نے. اب ایم اے انگریزی سرگودا میں نہیں تھا. میرے والد اور فیملی شفٹ ہو گئے فیصل آباد, وہاں میں نے ایم اے انگلش کر لیا. یعنی میری فیملی نے مجھ سے پورا تعاون کیا. میرے والد نے مجھے نابینا ہونے کا احساس کبھی جھنجھلاہٹ میں دیا ہو تو دیا ہو, وہ تو جھنجھلاہٹ میں تو جانے آپ کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے حوصلہ افزائی کی, وہ خوش ہو گئے کیونکہ میں انعام مجھے ملتے تھے. اساتذہ بڑی انکریجمنٹ دیتے تھے. تو میں لیکچر لگ گیا, پھر لکھنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا, کتابیں لکھیں, شعر کہے, افسانے لکھے, محبتیں کی, نفرتیں کی, لڑائیاں کی, جھگڑے کیے, انعام سب کچھ کیا. Just like a normal person. I never took myself abnormal. I was never abnormal. I am still not. Now I am 79. My age, I am 79. But I have all the courage, all the determination to forge ahead. تو یہ میری کہانی تو بڑی طویل ہے. آپ اور کوئی سوالات پوچھنا چاہیں جو موسٹ ویلکم. کہانی سننے میں ہم لوگ اتنے محب ہیں ماشاءاللہ, اور واقعی کہنا چاہیے کہ آپ کے زندگی سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں کہ کتنی اچھی زندگی اور کتنے ماشاءاللہ کارنامے انجام دیے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے یہ جو ہوتا ہے ریٹینا کے خلیوں کی جین تھراپی جو کہلاتی ہے, کیا آپ نے کبھی اس پہ کوشش کی یا آپ نے اس سے وہ کیا کہ کیونکہ اس سے بینائی واپس آ جاتی ہے, یا کچھ اور آپ کے ساتھ مسئلہ تھا؟ اور میں یہ سوال بھی پوچھوں گی کے ساتھ, یہ چاروں بہن بھائیوں کے ساتھ. جی ارشاد. جی, یہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ, اسے پلیز میری سنی بات, اسے کہتے ہیں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ. اس کا علاج ابھی آپ کے امریکہ میں بھی نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. میرے چاروں بہن بھائی, میرے دوسرے بھائی نے بھی ایم اے انگلش کیا, وہ بھی بلائنڈ تھا, 8 سال کی وجہ سے بلائنڈ ہو گیا تھا. وہ پھر 19ویں گریڈ میں چیئر پرسن کے طور پہ ریٹائر ہو چکا تھا مجھ سے گورنمنٹ کالج سے. میرا تیسرا بھائی پی ایف کالج میں تھا, وہ بھی بلائنڈ تھا. وہ اس کی بیچارے کی اب ڈیتھ ہو گئی, وہ بالکل بلائنڈ تھا. پھر میری بہن, جہاں اس زمانے میں تو لڑکیوں کو اسکول بھیجنا گناہ سمجھا جاتا, کفر سمجھا جاتا, لیکن ہم نے اس کفر کو توڑا. میری نابینا بہن کالج اسکول پڑھنے گئی اور اس نے کوئی 30-35 سال گورنمنٹ سروس کی اور پھر ریٹائرمنٹ. ہم نے ان پتھروں کو توڑا جو ہمارے راستے میں تھے. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی, شاید ٹوٹ گیا. جی اب آ رہی ہے کیا؟ جی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. آپ اپنا جی آ بہنوں رہی کا ہے. بتا. جی فرمائیے. جی میں آپ اپنی بہنوں کا بتا رہے تھے کہ ان لوگوں نے بھی ماشاءاللہ ہائی ایجوکیشن حاصل کی. جی, اب میری بہن بھی جاب کرتی رہی اور ریٹائر ہو گئی اب. اور ہمارے بچے تعلیمی میدان میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں. ماشاءاللہ. ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ پورا زور دیا. میرا بیٹا سینئر انجینئر ہے فوجی فاؤنڈیشن اسلام آباد میں. میری بیٹی انگریزی کی پروفیسر ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو ہمارے تمام بچے they are educated and they are well mannered. تو پھر میرے اب کیا کہتے ہیں, میری نواسی کا بھی بچہ پیدا ہو گیا. میں تو کون سی نسل چلتی گئی ہے, چوتھی یا پانچویں. پردانا ہو گئے آپ, ماشاءاللہ پردانا ہو گئے. ماشاءاللہ.
माशाल्लाह मेरी नवासी के भी नवासा पैदा हुआ है اور سارے بچے بڑے ہوشیار ہیں اور تمام فیملی دل سے مجھے پیار کرتی ہے، میرے چھوٹے بھی بڑے بھی. الحمدللہ. تو جی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ یہ بات پیار یہ ہے کہ رہنا چاہیے. میں اصل میں آج کل ہوں سرگودا میں. سرگودا میں نہ ٹیلی ویژن ہے نہ کوئی اچھا اخبار ہے، ہم چھپے چھپائے بیٹھے ہیں. ایک مجھے وہ جسے کہتے ہیں شہرت، اس کا کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے. تو اس کونے سے کہیں آواز جیسے آپ کی آ گئی وہ آ جاتی ہے. اگر میں لاہور چلا گیا تھا 3 سال کے لیے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، لیکن کسی وجہ سے میں واپس آ گیا تھا. یہ لمبی کہانی جو کہ میری ناکامی نہیں تھی، میں خوشی سے ہی آیا تھا، لیکن کچھ ایسے واقعات ہو گئے تھے. تو اگر آپ بڑے شہر میں ہو، ہیلن کیلر امریکہ میں تھی اور ایک امیر خاندان کی بیٹی تھی، ایک کیپٹن کی بیٹی تھی، جس کے پاس 24 گھنٹے ایک اٹینڈنٹ تھی. ڈاکٹر طاہر حسین انتہائی امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، جو کہ وزیر تعلیم بن گئے تھے. میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر کا بیٹا ہوں، مجھے فخر ہے اس پہ کہ ایک ذرائع نہ ہونے کے باوجود، لیکن حکومت وقت نے اس کا کوئی بڑا نوٹس نہیں لیا. اس کا نوٹس لینا میرا نوٹس لینا نہیں ہے، بلکہ مجبوریوں اور محرومیوں زدہ لوگوں کا نوٹس لینا ہے. اگر میں کچھ کر سکتا ہوں باقی لوگ کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے اپنی زندگی ویسے نابیناؤں کی بحالی کے لیے وقف کی ہوئی ہے. میں 50 سال سے نابیناؤں کے لیے کام کر رہا ہوں، اور وہ ایک این جی او ہے ہماری جو پرائیویٹ کام کر رہی ہے. اور میں آپ کے تھرو اپیل بھی کروں گا لوگوں سے کہ وہ ہماری مدد بھی کریں. ہمارا نمبر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پیسے کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اللہ دیتا جا رہا ہے اور ابھی تک وہ کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ہمارے تقریباً 2000 نابینا بچوں کو ہم نے ایم اے تک فری پڑھایا ہے. ہم فری میتھس دیتے ہیں، فری اسٹے دیتے ہیں، فری ایجوکیشن دیتے ہیں. ماشاءاللہ. صرف شعر کہنا کوئی بات نہیں ہے، غزل لکھ دینا کوئی چیز نہیں ہے، ناول انسان بنانا بات ہے. اور وہ انسان جو انسانیت کے درجے سے معاشرے نے گرا دیا ہو، کیا بات ہے، دھکے دے کے گرایا جاتا ہے. تم کچھ بھی نہیں ہو، تو کی کرے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے. یار حافظ جی، میں ٹائی پہن لوں، کوٹ پہن لوں، میں ہمیشہ ٹائی پہنتا ہوں. آج نہیں میں نے پہنی لگائی ہوئی، ٹائی بھی پہنتا ہوں، کوٹ لگا، پھر بھی دور سے لوگ کہیں گے حافظ جی. جیسے حافظ جی ہونا میری کوئی بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے. یہ حافظ جی جو ہے یہ ایک نک نیم ہے ہم لوگوں کے لیے. آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. ایک آدمی اول تو کوئی حافظ ہوتا نہیں. اسلام میں کسی کو حافظ کہنا، حاجی کہنا کہیں اس کا جواز نہیں. صحیح بات. لیکن ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ. جی آمین. پھر اب ہم چلتے ہیں. جی پلیز. ہمارے ساتھ جو ہے گفتگو کے پینل میں کہکشائیں دنیا اردو کے ادب کے ستارے موجود ہیں. وہ بھی آپ سے چاہ رہے ہیں کہ مختلف سوالات آپ سے پوچھے جائیں. آپ کے بلند حوصلے اور عظمت کو ہم سب ماشاءاللہ مل کے سلام پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے درخواست محترم جناب تنویر پھول صاحب سے کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے محترم مہمان ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب سے تو ضرور کریں. اور باقی لوگ جو موجود ہیں پینل میں وہ لوگ بھی اپنا سوال تیار رکھیں تاکہ ہم ان کو رحمت کلام دیں. جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے حالات جان کر کے تو بہت حیرت بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر وہ بھی کہ دیکھیے کس طرح سے سہارا دیتا ہے. اور آپ کی زندگی جو ہے وہ تو لیسا للانسان الا ما سعی کی تفسیر معلوم ہوتی ہے. اور اس کہ حوصلہ مندی کے ساتھ آپ خود بھی کیا، آپ اپنے بھائی بہنوں کو بھی آگے بڑھایا، والدین کو بھی آپ نے مطلب حوصلہ دیا.
اور ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ تو اس محرومی کے شکار نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل نہ نہیں۔ میرے بچے ہیں، نہ میرے بچوں کے بچے ہیں، نہ ان کے بچے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کوئی ہمارے ہاں ہمارے جینیٹیکل یہ صورتحال غالباً تھی نہیں تھی، جی کیونکہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس میں بھی یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھی۔ ہاں، نہیں تھا۔ مطلب یہ ایک آزمائش تھی جو یہ آپ بھائی بہنوں کے ساتھ تھی۔ اور بس حادثات سے جی ڈاکٹر، تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا کہیں گے اس بیماری کو، یا جو آپ چاروں بہن بھائیوں کو اچانک یہ ہے، یہ اسے پگمنٹ اور اسے کہتے ہیں ریٹینل ڈٹریچمنٹ۔ ریٹینا جو ہے وہ ذہن وہ ذہن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، رابطہ روشنی کرنیاں سے دماغ تک نہیں جاتی، جی دماغ سے اس کا وہ نہیں نظر نہیں آتا، تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جی جی، تو وہ ابھی علاج اس کا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے۔ ہاں ابھی نہیں ہے علاج اس کا۔ ہاں بہت سے ایسے ہیں ابھی، ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کتنے راز ہیں، کتنے جتنا وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے دیتا جا رہا ہے۔ جتنی بھی سائنس کی ترقی ہے اسی پہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی، اللہ کی رضا سے ہی انسان جو ہے وہ دریافت کرتا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ آپ دیکھیں اس لیے ہاں اگر ایک نامحرومی عطا کرتا ہے تو بہت سی چیزوں کو جو بہت ہے اس وہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ انسان ویسے میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ اچھا جی جی، بے شک جب انسان کو مجبوریاں آتی ہیں تو اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن انسان کی اندر کی ہمت اس کی اسے دیتی بالکل۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ہے یہ قرآن پاک۔ ہے۔ کیونکہ کتنے نابینا ہیں جو گلیوں میں اب بھی مانگتے پھر رہے ہیں، بالکل ظاہر۔ اور لوگ ان کو دے کر خوش ہوتے ہیں کہ اس کو دے کر مجھے جنت مل جائے گی۔ جنت کے لیے وہ فقیروں کو مزید فقیر بناتے ہیں۔ صحیح بات۔ یہ بڑی مذہقہ خیز صورتحال ہے ہر طرف۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ بے شک، لوگ کہتے ہیں بصارت گئی تو بصیرت آ گئی۔ بصیرت یوں ہی نہیں آتی، ایسی نہیں آتی۔ بصیرت ٹھوکریں کھا کے آتی ہے۔ اقبال عظیم صاحب کو جی 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 ارشاد۔ ہاں نہیں، یہ شعر نہیں میں نے کہا جی۔ میں چونکہ ٹیچر رہا ہوں پوری زندگی، تو ٹیچرز کو اور کچھ آئے یا نہ آئے بولنا بہت آتا ہے۔ ماشاء اللہ، جی جی جی۔ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بولنا ہے کہ آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یقیناً اس سے ہماری آنے جو لوگ پروگرام دیکھیں گے ان کو بھی یقیناً بہت فائدہ پہنچے گا۔ ہم چلتے ہیں سرور سمدانی صاحب کے پاس۔ سرور سمدانی صاحب جو حمد و نعت کا ایک بہت معتبر، ایک روشن حوالہ ہے، میں ملتمس ہوں سرور سمدانی صاحب سے کہ آپ ضرور ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب سے سوال کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ میں سوال نہیں کروں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو شاید یاد ہو، ہمارے گھر مشاعروں میں ملتان بہت تشریف لاتے رہے۔ میرے والد تابع سمدانی صاحب کے ساتھ بڑے مشاعرے پڑھے۔ میں نے ان کی شخصیت پہ ابھی بیٹھے بیٹھے 5 شعر فی البدی کہے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں سوال نہیں کر رہا۔ فضل خالص سے جہاں ہیں آپ اقبال شیخ، فضل خالص سے جہاں ہیں آپ اقبال شیخ، میر محفل خود وہاں ہیں آپ اقبال شیخ۔ اقبال شیخ میں مجبوری ہے، شعری مجبوری ہے کہ اقبال شیخ لائے ہوں میں۔ آپ کے جو میزباں ہیں کس قدر خوش بخت ہیں، آپ کے جو میزباں ہیں کس قدر خوش بخت ہیں، اس زمین پر آسماں ہیں آپ اقبال شیخ۔ آپ اقبال شیخ، فرد وہ ایک انجمن ہے آپ اپنی ذات میں، فرد وہ ایک انجمن ہے آپ اپنی ذات میں، گل ہے وہ ایک گلستاں ہیں آپ اقبال شیخ۔ آپ اقبال شیخ، کیا کہنا، کیا کہنا، بہت منفرد ہے قدر و قیمت میں ہماری بزم میں، منفرد ہے قدر و قیمت میں ہماری بزم میں، اب ہمارے درمیاں ہیں آپ اقبال شیخ۔ آئینے ہوتے ہیں روشن جن کی صورت دیکھ کر،
क्या कहना, वाह। होते हैं रोशन जिनकी सूरत देखकर जिनकी ऐसे सूरत ना देखकर बेगुमा हैं आप इकबाल शेख, इकबाल फजले खालिद से जहां हैं आप इकबाल शेख, मीरे महफिल खुद वहां हैं आप इकबाल शेख। बस ये जल्दी जल्दी में जो इजहार अकीदत है उसका वो मैंने बयान कर दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा लिखा आपने। फजल खालिक से जहाँ है आप इकबाल से, क्या कहना, अल्लाह का फजल और आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे जिनके पास बिनाई होती है, ज़ाहिर है वो तो अपने नूर से पढ़ लेते हैं और वो कर लेते हैं। आप जो ब्रेल यानी अंगुलियों की जुम्बुश से और उंगलियों के लम्ब से लफ्ज़ों को पढ़ने के माहिर होते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये जो मैडम, ये जो मैंने अभी अपनी सुनाई थी ना गजल या ना सुनाई थी, ये ब्रेल में लिखी हुई, इसे ब्रेल कहते हैं, BRAILL। जी ब्रेल, ब्रेल जी जी, ब्रेल से पढ़ रहे हैं जी। ब्रेल से पढ़ रहे, माशाल्लाह। और ये फ्रांस के एक नाबीना था, लुई ब्रेल ऑफ फ्रांस। तो हमारी तमाम किताबें नुक्तों की सूरत में होती हैं और हर लेटर के लिए हमने नुक्ते मुकर्रर किए हुए। देयर आर ओनली 6 डॉट्स एंड बाय देयर वेरिएशन वी आइडेंटिफाई लेटर्स। जब हरफ बन जाते हैं तो फिर लफ्ज बन जाते हैं, जब लफ्ज बनते हैं तो जुमले बन जाते हैं। उसका माशाल्लाह सिलसिला चलता रहा। हाँ, बहुत आसान सी बात है। क्या बात, मेरी तमाम इंशाल्लाह बहुत अच्छी। तो ये डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेल में होता होगा तो यानी उर्दू लैंग्वेज के लिए अलग होते होंगे नुक्ते, या इंग्लिश या मेरे पास तमाम, हाँ यहाँ उनके लिए अलग अलग है। जी जी, अलग अलग, ये भी बहुत माशाल्लाह, इतनी जबानों पे जिनको अलग होते हैं। अंग्रेजी के लिए अलग, कुरान मजीद जी जी, कुरान मजीद पढ़ने में आपको जी अरबी माशाल्लाह माशाल्लाह अलग होते होंगे उसके लिए। अलग, हाँ, हर हर के लिए। तो ये शेख साहब से सवाल ये भी किया जा सकता है कि कभी ऐसा भी हुआ रफीक कादिर साहब कि ये नकाते हैं, इसे रहनुमाई के लिए और अल्फाज जी, मोहतरम डॉक्टर शेख इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जी, मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये नुक्ते जो हैं, इनसे जिस तरह आप बता रहे हैं कि हरूफ बनते हैं और हरूफ से फिर अल्फाज की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो आप उसकी मदद लेकर जी तो ये पढ़ते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको अगर वो की तरह भूल जाए वो नुक्ते जो हैं वो क्या ना रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलती तो सामने होते हैं। वो जो सामने होते हैं, ये मेरे पास क्या, मेरे लब, ये मीम रे बड़ी, ये लब लाम बे लिखा हुआ, पे ना नून, ये सब लिखा हुआ है सारे का। ये हरूफ से होते हैं। और अगर आप देख सकते हो, ये डॉट्स, ये डॉट्स हैं, ये अलग अलग डॉट्स। जी जी, तो ये बिल्कुल ये स्क्रीन पर बिल्कुल शुरू में लगता है कि क्या ये क्या जंजाल है, मगर ये बिल्कुल आसान है। बड़ा एहसान किया था जिसने ये शुरू किया था। माशाल्लाह, देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग कारनामे करके गए और अपनी आने वाली दुनिया के लोगों के लिए आसानियां फराहम करके गए। उंगली से महसूस कर लेते हैं और डॉट की वजह से कि ये शक्ल क्या है, उसकी हर्फ की शक्ल महसूस कर लेते हैं। और आपके ये डॉक्टर, ये क्या आपका सवाल मैंने जब कॉलेज मोहतरमा, बस ये सवाल मैंने शेख साहब इसलिए पूछा क्योंकि शॉर्ट हैंड में मैंने देखा है कि लोग किस तरह इंतहाई मुख्तसर शॉर्ट हैंड में जो तो होता है ना, एक क्या लेंगे शॉर्ट हैंड होता है, उससे वो लफ्ज को पहचानते हैं। तो ये वो भी है कि हाँ, तो जब आप ये वो जो शॉर्ट हैंड है ना, ये जरा शॉर्ट हैंड से मुख्तलिफ है। अच्छा,
जी जी जी, वो भी रेस आपके होता है ना उंगलियों को ठीक, उससे। जबरदस्त, बहुत हाँ, बहुत इसमें बहुत बड़ी, इसमें बहुत शुक्रिया हरूफ होंगे, डॉक्टर ये मशक करते हैं इसको। जबरदस्त, बहुत है, बहुत अच्छी तरह बहुत से शुक्रिया आपने आपका। वजाहत की और उंगलियों हमारे से मशक कर लेते हैं जी जी उसकी जी, हर हमारे सीटी गुफ्तगू को। के पैनल में शामिल हैं सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब जी। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ मोहसिन साहब कि आप भी सवाल करें डॉक्टर साहब से। दिल तो चाह रहा है कि सिर्फ मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनते रहें हम लोग और मुस्तफीद जी होते जी रहें, लेकिन सवालात जी, के आप जरिए जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं हवाला डॉक्टर से शेख इकबाल साहब से एक सवाल ये करूंगा कि आपकी 24 किताबें छपी, तो इस किताबें छपवाने में आपके लिए यकीनी तौर पर किसी ने लिखने का और बाकी जो काम होगा वो अंजाम दिया होगा, तो वो कौन था जो कि आपके साथ साथ इन मामलात में लगा रहा और उसने आपकी हेल्प करके ये सारी किताबें वगैरह छपवाई? मेरे पास शागिर्दों की एक बहुत बड़ी खेप है। माशाअल्लाह। मैं CSS को भी पढ़ाता हूँ और PMS को भी तैयार कराता हूँ। माशाअल्लाह। माशाल्लाह। मैं कभी लिखने लिखाने वालों की कमी मुझे महसूस नहीं हुई, वो हर वक्त मेरे पास मौजूद होते हैं। फिर मैंने एक ऐसा छोटा सा सिलसिला बनाया हुआ है जहाँ 5-7 तलबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तलबा भी होते हैं, तालिबात भी होती हैं। दे आर ऑलवेज हेल्पिंग। आई नेवर फील ऑल अलोन। बल्कि आम लोगों के पास वो सोचते नहीं होती जो अल्लाह ने पता नहीं क्या वजह है मुझे दे दी। इन्हीं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की मदद से आपकी किताबें जो पब्लिक में आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या चीज? मैंने कहा इन्हीं बच्चों की मदद से जो है आपकी किताबें छप के हाँ जी मार्केट बिल्कुल, में। किताबें ये बड़ा मुश्किल होता है, प्रूफ रीडिंग करना, पहले कंपोज करना, और आजकल तो किताब छपवाना ही चांद पे जाने के बराबर है। जी इतनी किताब तो मैंने जितनी किताबें शाया की, और अब फिर किताबें हमारे यहाँ बिकती नहीं है, तोहफे में दी तोहफतन जाती दी हैं। जाती है, हाँ, तोहफतन ही दी जाती है। जी जी लेकिन मैं समझता हूँ बेचने की जरूरत भी नहीं। अगर जो आप कह चुके हैं वो बात कहीं पहुंच रही है, यू आर तो ये एम्पली पेड। इससे ज्यादा क्या पेमेंट होगी? कोई आदमी को आपने रास्ता दिखा दिया, किसी की जोश जी पैदा कर दिया, वाह, किसी को इल्म दे दिया, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। वो दिल बदस कावा के हज अकबरस, 100,000 कावा या दिल क्या बेहतर। कहना, क्या कहना। क्या ये दिलों को जीतिए। वो जो दिलों को जीत ले वही फातिह ज़माना। वही बात है हम जमाना तो की। दिलों का खेल खेलते हैं, हमें तो दिलों की बेशक बेशक। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ बाजी मौजूद लगानी है आती है। डॉक्टर शबीर अहमद तो कादरी साहब, हमारी अदबी जी, दुनिया का एक मुमताज और अच्छा, मारूफ नाम है। वो कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादरी साहब तो माशाल्लाह। मेरे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत पुराने। इंशाअल्लाह। और इन्होंने मेरी किताबों में बहुत कुछ लिखा। ये अखबार एक निकालते थे, उसमें ज्यादा चीजें मेरी ही छपा करती थी। कादरी साहब, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से मेरी बहुत सी मुलाकातें हैं, जैसा वो खुद भी बता रहे हैं। मैं सरगोदा माशाल्लाह। जाता हूँ तो कोशिश करके डॉक्टर साहब से मिलता हूँ, और माशाअल्लाह। कई दफा फैसलाबाद में भी यहाँ अल फैसल नाबीना मरकज है, मुझे याद है कि वहाँ भी वो तकरीबात में आया करते थे, तो हम इकट्ठे स्टेज पे होते थे और फिर इस मिशन को लेके आगे बढ़ते रहे। मैं यकीन जाने कि दुनिया में जो भी जितनी भी उम्र है बंदे की, उसमें बहुत से लोगों से मुतासर होता है, सीखता है और कस्ब फैज करता है। लेकिन यकीन जाने कि जिस शख्सियत से मैं बेहद मुतासर हूँ, उनकी फिक्र मुसलसल की बदौलत, उनकी मुसलसल काविशों की बदौलत, और उनकी तख्लीकी और तनकीदी जिंदगी के हवाले से और मुसलसल एक अमल से वो अपने आप को गुजार के ले आए हैं, बावजूद के अल्लाह ने उनसे एक नेमत छीन रखी है, लेकिन उसे उन्होंने अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दी।
मैं इस मौके पे उनके वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बेटे की, अपने बच्चों की तालीम से गफलत नहीं बरती, बल्कि उन्हें आला तालीम के हसूल के लिए मौके फराहम किए और एक शहर से दूसरी शहर मुंतकिल हो जाते थे अपने बच्चों की खातिर। ये एक बहुत रोशन मिसाल। माशाल्लाह, बहुत देखिए, जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी से, वहीं से इन्होंने एमए अंग्रेजी किया था। और ये हमारे इस इदारे का भी एजाज है। फिर इन्होंने एमफिल किया, फिर पीएचडी की, फिर आप देखें क्या कुछ है। अब यहाँ मैं एक चीज की निशानदेही करूँ सर मोहतरमा, कि इन्होंने पर्दा सीनी से के नाम से अपनी एक खुद नविश्त भी लिखी, जो मुझे इसमें सही तो याद नहीं, लेकिन 15 साल पहले शायद वो शाये हुई। और ये पढ़ने से इनकी जिंदगी के पर्दा सीनी से जो काबसे हैं, जो एक मुसलसल अमल है, उसका भरपूर अंदाजा होता है। ये अगरचे खुदनविश्त कबल अज़ वक्त है, मैं समझता हूँ। अब डॉक्टर साहब ने उसके बाद जितनी भरपूर जिंदगी गुजारी है अपनी तहकीकात के जरिए, तहकीकात के जरिए, और खास तौर पे माहनामा सफेद छड़ी जो एक रोशन मिसाल है। हम जीना है उनके लिए एक ऐसे शख्स ने गोया हमारे सबके हाथों में एक सफेद छड़ी पकड़ा, वो है उनका अदबी रिसाला। और उसके जरिए वो मुसलसल ऐसे खुसूसी इशारतों का भी एहतमाम कर रहे हैं, आम नंबर भी शाये कर रहे हैं, जिनमें है तो वो तर्जमान इनके उस इदारे का जो नाबीनाओं के लिए या बसीरत से महरूम अफराद, बसारत से महरूम अफराद के लिए है। लेकिन इनकी इस काविश को मैं समझता हूँ, अगर ये किसी और मुल्क में ये काम कर रहे होते तो मैं समझता हूँ इन पे इससे नोबल इनाम मिलना चाहिए, और वो इनकी कद्र कर। बदकिस्मती से हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ जीते जी तो खैर क्या कद्र होगी, और कोई जांच परखने वाला तरीका भी हमारे पास तो नहीं रहा। उसूल ज़द की दौड़ में और इनामात के दौड़ में उनके हासिल करने के लिए जिस तरह पापड़ बेले जाते हैं और एक दूसरे के साथ रबाबत कायम किए जाते हैं, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब उन चीज़ों से बहुत बेनियाज है। लेकिन ये मेरा और आपका फर्ज है, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने आज एक ऐसी शख्सियत के लिए ये प्रोग्राम किया है, उनकी कदर शनासी की है, और उनकी जिंदगी के हवाले से जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी, अपने उस मिशन को लेके आगे बढ़े जो बसारत से महरूम अफराद के लिए है। तो मुझे आपके लिए मालूम नहीं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहेंगे कि मैं आपके साथ मोहतरमा जेबी साहिबा, मोहतरमा और नवाज गुलियाना साहिब और मोहसिन साहिब और दीगर अहबाब जो यहाँ जमा है, वो जिस मेहनत से जौहरे तवाना ढूंढ के लाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये प्रोग्राम जो मुसलसल हो रहे थे एक नौयत के, आपने उसमें तब्दीली ला के बहुत ही अच्छा किया है, और किसी एक शख्सियत को जीते जी उसके होने का एहसास दिलाने की जो आप काविश कर रहे हैं, खुद एक ऐसा जज्बा है जिसकी जितनी भी तहसील की जाए वो कम है। आज डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ, सलाम भी अर्ज करता हूँ, और मैं इनका बहुत ही ज्यादा कदरदान हूँ। और गो मैं रहा रही ने सितम भाई रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से नहीं, तो मुसलसल इनायात करते रहते हैं। और किताबों से भी अभी उन्होंने जो एक 2-4 माह पहले एक रिसाला शाये किया है, वो शेख मोहम्मद इकबाल नंबर है, उसके पढ़ने से भी, और भी रिसालों ने गोशे और नंबर शाये किए हैं और इन्हें खराज तहसीन पेश किया है। मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त आपके सवाल की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि वो खुद नविश्त जो आपकी
कुछ कबल अज़ वक्त मैं उसे कहूँगा छप गई, क्या आप उसके तसलसल में आप उसका जो दूसरा हिस्सा है या जिल्द है उसकी इशाअत पे तवज्जो दे रहे हैं सर? पर्दा सीनी से किस पर जी? डॉक्टर साहब जो आपने खुद नविश लिखी है खुद नविश्त आपकी सर। जी वो जो मैं पूछ रहे हैं खुद कि नविश उसका लिखी दूसरा है। हिस्सा आप क्या कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी साहब आपसे कह रहे हैं कि अभी तो आपको बहुत कुछ लिखना है और आपके तजुर्बात से हम लोगों को फायदा हासिल करना है, तो आप इसका दूसरा हिस्सा मैं बहुत कुछ लिखता जा रहा हूँ। मैंने नसर में भी कुछ 10 किताबें लिखी हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तमाम, और नफ्सियात पर भी मेरा बहुत बहुत उम्दा किताब है। इक़बालियात पर मैंने किताब लिखी, इक़बाल बहादुर इक़बाल। फिर मैंने अंग्रेजी शुरा को उर्दू के शुरा पढ़ने वालों से मुतारिफ कराया, जॉन डन को, जॉन कीट्स को, और जो कि पहली काविश है, जॉन कीट्स पर पहली किताब है जो मैंने उर्दू में लिखी है, और इस जॉन डन पर। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अंग्रेजी और उर्दू दोनों अपनी जुबानें लगती हैं, और पंजाबी भी, और मैं पर्शियन में भी लिख लेता हूँ, और पंजाबी में भी मेरी किताब छप चुकी है, ना इश्क हिंदी का ना भी शायरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बहुत सारे मज़ामीन में पंजाबी में लिखता हूँ, और पर्चे हमारे जो है, तख्लीक है, अल हमरा है, ब्याज है, लाहौर में छपते हैं, ये तमाम मेरी तहरीकात को शाया करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सामीन, तो हमारे साथ अजीम शख्सियत मौजूद है जो नूरे बसारत से नहीं बल्कि दिल के नूरे बसारत से दुनिया को देखते और परखने वाली शख्सियत डॉक्टर शेख इकबाल साहब मौजूद हैं। अब मैं मोहतरम जनाब फैयाज वर्दिक साहब जो कुवैत से हमारे साथ राब्ते में हैं, माशाल्लाह बड़े बुलंद पाया शायर हैं, अदीब हैं, अदाकार भी हैं, मैं मुल्तमिस हूं उनसे बड़े अदब से कि आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान से सवाल करें। जी फैयाज भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो तीसरी मकतब हूँ, डॉक्टर साहब से क्या सवाल करूँगा। मैं तो डॉक्टर साहब जैसी हस्तियों से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, अभी तक सीखने के अमल से गुजर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल करूँगा कि जो अंग्रेजी लिटरेचर है, अंग्रेजी लिटरेचर और जो उर्दू लिटरेचर है, इन दोनों में आपको वाजिब फर्क क्या नजर आता है? क्या अंग्रेजी में लिटरेचर लिखने वाले लोग हमसे बहुत एडवांस है, या हम उर्दू में लिखने वाले लोग बहुत पीछे हैं, या हम इसमें क्या फर्क आप वाजिब करेंगे? आपने बहुत उम्दा सवाल किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी लिटरेचर और माशाल्लाह, क्या सवाल पूछा। सवाल है कि क्या अंग्रेजी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर लिखने वालों में क्या फर्क है? मेरा जवाब ये है कि दोनों इंसान के दुख और उनकी खुशियों को मरकज बनाते हैं। अदब, किसी अदब में कोई फर्क नहीं है, ना रशियन में, ना अमेरिकन में, ना पाकिस्तानी में, कुछ भी नहीं है। जो इंसान से डील नहीं करते वो लिटरेचर है ही नहीं। अदब बुरा इंसानियत बस। देखिए आप इंसान है ना, लेकिन दोनों की तहरीरों में, दोनों के तरीकों में कोई तफरीक है, दोनों के तरीकों में तफरीक है, कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है। मसलन आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कदगन ज्यादा है, मगरिब में कदगन जरा कम है। हमारे यहाँ आप सच डर डर के बोलते हैं, उधर आप डरते नहीं हैं, बल्कि कह के चले जाते हैं। बल्कि मैं अभी बर्टन रसल पढ़ रहा था, बर्टन रसल का तर्जुमा मैं कर रहा था उर्दू में। बर्टन रसल कहते हैं कि हमारे यहाँ भी यही पाबंदियां हैं, हम अपनी मर्जी से पढ़ा भी नहीं सकते। ये कदगन हर जगह हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है। हमें रिवायात खा गई, हमें रसूमात ने निगल लिया, हमें तवहमात ने कच्चा चबा गए, तवहमात मफरूजे।
یہ سب واحیات چیزیں. ہم انسان کی بجائے بندر بن گئے ہیں. بندر انسان رہے ہی نہیں ہیں. آئی ایم سوری ٹو بی سو ریش ان مائی ایکسپریشن. لیکن فرق کچھ نہیں. شیلیہ پڑھیے, کیٹس پڑھیے, بائرن پڑھیے, شیکسپیئر پڑھیے, انسان کی بات کرتے ہیں. ڈینٹے پڑھیے, آپ سوئفٹ پڑھیے, آپ دستویوسکی پڑھیے, آپ کوئی پڑھ لیجئے, ایمرسن پڑھ لیجئے. میں نے تو یہ سب لٹریچر بہت کچھ پڑھا ہے. پرشین پڑھ لیجئے آپ, جو پرشین شاعری آپ ابھی اس کو پڑھ لیجئے, شاہ سعدی کو پڑھ لیجئے, حافظ کو پڑھ لیجئے, عمر خیام کو پڑھ لیجئے. آل آر ٹاکنگ آف ہیومینٹی. اس کے دکھوں کا, اس کے غموں کا, اس کی خوشیوں کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر ڈفرینس پیدا کیا, ڈفرینس ہے نہیں, ڈفرینس پیدا کر دیا گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ادبی دنیا کا ایک ممتاز نام فیض جلیل صاحب. میں ملتمس ان سے کہ آپ ڈاکٹر پروفیسر شیخ اقبال صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں. آپ کی آواز بند ہے, مائک کھول لیجیے اپنا مائک. اب میوٹ ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. دیکھیے جی, جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کے نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے صرف مجھے یہ شوق ہوتا ہے کہ آپ جیسے اساتذہ کو سن کے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو مزید خوبصورت سے خوبصورت بنا. جو کچھ الحمدللہ مجھے سکھایا ہے وہ ادب بھی سکھایا ہے, اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے محبوب کا شکرانہ سکھایا ہے. زندگی میں صرف ایک چیز کی حسرت ہے, اور میں اس پہ بس صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں, اللہ ان جیسی ہستیوں کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے, اور ان کے علوم و فیوض سے ہم ہمیشہ مبرک ہوتے رہیں, مستفیض. میری ایک ہی حسرت ہے میری, اور جس میں الحمدللہ میں 15 سال پانی کے جہازوں میں انجینئر رہا, اور تقریباً مور دین 70 کنٹریز کا وزٹ کیا, اور اس میں بر اعظم انڈیا تک, بمبے اور احمد آباد بھی. تو میں تو اس سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں, اگر جینا اگر ہے تو کسی کے کام اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہان میں. زندگی کا مقصد جی اوروں کے کام, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی بندگی اور اس کے بعد اس کی جو مخلوق ہے, چاہے وہ چاہے ان کی خدمت, تو اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں. ڈاکٹر صاحب کی بھی ماشاءاللہ جو میں نے ابھی ہسٹری ان کی جانی, اس سے اور تقویت مجھے حاصل ہو رہی ہے. اور بس آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ روحانی طور پہ کسی کے کام آ جاؤں, تو بس میں اسی میں لگا ہوں. دعا میرے فرمائیے گا, بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ یہ تو سبھی زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بہت بہت ہمارے ساتھ موجود ہے شاہین ملا. شاہین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہماری ادبی دنیا کا ایک اپنا نام ہے شاہین ملا سر. ویسے میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی کرنا چاہیے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. جی آپ میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی آواز تو آ رہی ہے جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ شاہین آپ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. بہت خوشی کی بات ہے, اس وقت بہت ہی نامی گرامی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں,
اور میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی لائف میں کبھی نثر کی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، ابھی آپ نے بتایا، اور بہت سارے جو انگلش لٹریچر اور اردو لٹریچر کے حوالے سے فیاض وردیق صاحب نے سوال کیا تھا، اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بتایا۔ کیا کبھی آپ نے شعر و شاعری کی طرف یا کسی اور ادب میں کسی اور طرف بھی آپ نے اس بات پر سوچا، یا کہ کچھ اپنی تصانیف وغیرہ لکھی یا کسی؟ میں بتا چکی ہوں کہ آپ کی 24 کتابیں آ چکی ہیں، آپ شاید موجود اچھا، نہیں میں سوری ماشاءاللہ شروع میں حمد و نعت پیش کی ہے۔ اچھا میں لیٹ ہو گئی، میرا یہی سوال پھر میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی میں تھی نہیں، انفارچونیٹلی جی ڈاکٹر صاحب اپنی خوبصورت غزل ہم لوگوں کو سنائیے جو آپ کو بہت پسند ہو۔ جی بالکل سنائیے۔ جی تبسم مجھے لائٹ چلی جائے، ہم دونوں نے سنائی کمال کر دی۔ جی کیا میں پہلے بلا لوں یا آپ غزل سنیں گی ڈاکٹر صاحب کی؟ ہاں لائٹ دیوی صاحبہ کے ساتھ مسئلہ ہے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ہمارے اٹلی کے سرپرست اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ، ملکہ قلم و قرطاس کہنا چاہیے، اردو ادب کا ایک مایہ ناز نام ہے۔ بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ دیوی صاحبہ سے سوالات پوچھیں۔ جی میں ڈاکٹر صاحب سے سوالات تو پوچھتی ہوں، لیکن آپ کی ادبی خدمات کے حوالے سے میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے شاعری میں اردو شاعری، پنجابی شاعری، فارسی شاعری، انگریزی شاعری، نثر نگاری، نقد و نظر، سوانح نگاری، انشائیہ نگاری، گانا نگاری، ترجمہ نگاری اور علم نفسیات، گیت نگاری، اور اس کے علاوہ آپ کا براڈ کاسٹنگ اور صحافت ایک بہت بڑا حوالہ، اور سب سے بڑا حوالہ بھی میں بات کرتی ہوں، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی تو وہ ہمیں خود جواب دیں گے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کے چند ایک شعر یہاں پڑھنا چاہوں گی، پھر ہم نے شاعری تو ڈاکٹر صاحب سے سننی ہے کیونکہ اصل میں تو پروگرام انہی کا ہی ہے، انہی کو ہم نے سارا وقت دینا ہے، لیکن چند شعر میرے سامنے آ گئے ہیں تو میں پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، جہاں کے کام یوں تو سب کٹھن ہیں، جہاں کے کام یوں تو سب کٹھن ہیں، مگر دراصل مشکل سوچنا ہے۔ جہاں کے کام یوں تو سب کٹھن ہیں مگر دراصل مشکل سوچنا ہے۔ بے شک سوچنا بہت مشکل ہے۔ پڑھتے ہیں اندازوں کی انگلی کو پکڑ کر، چل پڑتے ہیں اندازوں کی انگلی کو پکڑ کر، ہم آنکھ میں موجود نظر بھول گئے ہیں۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں، کچھ لوگ تھے ساحل پہ کھڑے کانپ رہے تھے، کچھ لوگ تھے ساحل پہ کھڑے کانپ رہے تھے، طوفان تھا میں تھا میرا مٹی کا گھڑا تھا۔ کچھ لوگ کھڑے کانپ رہے تھے، طوفان تھا میں تھا میرا مٹی کا گھڑا تھا۔ ابھی ہم تو ابھی شاید سنیں گے اور ماشاءاللہ سے بات چیت کریں گے، میرے بھی سوال بھی باقی ہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی میں اور بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کیا رہا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کیا رہا، ہمت رہی حوصلہ رہا۔ بہت اچھا۔ پوچھتے ہو مجھ سے پاس کیا رہا، ہمت رہی، امید رہی، حوصلہ رہا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جنہیں اجالوں میں کچھ نظر نہیں آتا، وہ جنہیں اجالوں میں کچھ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں کی روشنی ہے میرے پاس۔ اجالوں میں کچھ نظر نہیں آتا، ان کی ساری آنکھوں کی روشنی ہے میرے پاس۔ شعر کہتا جاتا ہوں، شعر ہوتے جاتے ہیں، بے کلی ضروری ہے، بے کلی ہے میرے پاس۔ کیا بات ہے، بے کلی ضروری ہے، بے کلی میرے پاس۔ میں نے زندگی اپنے ڈھب سے کاٹی ہے، میں نے زندگی اپنے ڈھب سے کاٹی ہے، کل بھی تھا میرا اپنا آج بھی ہے میرے پاس۔ شعر اور پڑھتی ہوں۔ دانشوروں کے عمر بھر آنسو نہ تھم سکے، دانشوروں کے عمر بھر آنسو نہ تھم سکے،
जिंदगी के मजे लूटते रहे। दानिश तो भर हो सके, बेइल्म जिंदगी के मजे लूटते रहे। और एक शेर में और कहते हैं, गमज़दा लोगों में जाने कितनी बार, गमज़दा लोगों में जाने कितनी बार बांट डाली अपने हिस्से की खुशी। क्या कहना। डॉक्टर साहब से कुछ सवाल भी हैं मेरे, मैं वो भी एक गजल और उनकी मेरे सामने आ गई है। जिंदगी कट गई दौड़ते भागते, जिंदगी कट गई दौड़ते भागते, कांपते कांपते हाँपते कांपते। आज तुम बोल लो, क्या बात है, क्या बात बोल लो, आज तुम बोल लो, जिंदगी है यही, हम तो थक ही गए बोलते बोलते। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। डॉक्टर कहते हैं, आज तुम बोल लो, जिंदगी है यही, हम तो थक ही गए बोलते बोलते। हारे लेकिन कभी हार मानी नहीं, हारे लेकिन कभी हार मानी नहीं, गिर पड़े उठ गए दौड़ते दौड़ते। क्या बात है, क्या बात, लेकिन कभी हार मानी नहीं, गिर पड़े उठ गए दौड़ते दौड़ते। रास्ते मिल गए, मंजिलें मिल गईं, कितने जहाँ से गए खोजते खोजते। क्या बात। इतनी दुनियाएं हैं इतनी क्या खबर, इतनी दुनियाएं हैं इतनी क्या खबर, कितने आए गए देखते देखते। करती हूँ डॉक्टर साहब से 2-3 सवालात जरूर करूंगी। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप काम है जो आपने बसारत से महरूम लोग हैं उनके लिए आपने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है, उस हवाले से आपने अभी बताया भी हमें कि आपने बेशुमार तलबा को जो है वो तालीम दी है, ऐसे लोगों को जो बसारत से महरूम थे उन्होंने, आपने उनको इल्म का रास्ता दिखाया। एक सवाल उसमें से ये भी आता है, क्या ऐसा कोई कोशिश की गई कि उनकी बिनाई वापस आ जाए, जैसे कि होता है कि आंखों का ऑपरेशन करके बिनाई लगा दी जाती है, तो इस सिलसिले में भी कोई काम हो रहा है, या सरकारी अदारे या गैर सरकारी अदारे आपको उनका कोई काम? ये इस सिलसिले में करनिया चेंज हो जाता है, करनिया जो आउटर पोर्शन होता है ना का, और वो करनिया भी श्रीलंका से आता है, तो वो चेंज कर लेते हैं, और रेटिना को चेंज नहीं कर सकते, करनिया चेंज कर लेते हैं जी। या फिर वो आप जानती है कि ऑपरेशन कर देते हैं तो उसके बाद लेंसेज लगा देते हैं, बिनाई रुक जाती है, लेंसेज लग जाए तो बिनाई फिर डिटीरियोरेट नहीं होती। सिग्नल इतने कमजोर है कि उनकी आवाज हम सब तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल। इसका ताल्लुक ब्रेन से बता चुके हैं डॉक्टर साहब, जी 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 ब्रेन से ताल्लुक उसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ अभी। जी डॉक्टर साहब ने बताया था शुरू में। हाँ, उसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। मैंने कहा कि करनिया वो एक करनिया होता है आउटर पोर्शन ऑफ द आई बॉल, जी जी, करनिया चेंज हो जाता है, यहाँ पाकिस्तान में भी हो जाता है जी। और इसी तरह लेंसेज लगवा लेते हैं, कभी बिनाई कमजोर आपकी हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो ऑपरेशन करके वो लेंसेज फिट कर देते हैं, बिनाई वहीं ठहर जाती है 1 हफ्ते तक। ये दोनों ये बड़ी बात है, लेकिन ये उस सूरत में जब आपकी बिनाई बहाल हो, कुछ हो अंदर, जब खत्म हो चुकी फिर कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको ये कब एहसास हुआ कि आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें हैं, और पहले आपने शायरी शुरू की या नसर निगारी की तरफ गए? पहले मोहब्बत करना शुरू की। यही मेरा सवाल था। बताइए बात कीजिए। जब तक आप में मोहब्बत का शोले जवाला नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कह सकते, चाहे वो मोहब्बत का शोले जवाला मोहब्बत वतन के लिए हो, इंसान के लिए हो, किसी सिलसिले। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब उसमें कामयाबी हुई या नाकामी हुई? वाह, खालिद के लिए हो, राजू करवा रही है आप। कामयाबियां होती हैं नहीं, राज नहीं है, ये हकीकतें हैं। तारे मोहब्बत कामयाबी के माने नहीं रखते।
जी क्या फरमाया? मैंने कहा डॉक्टर ये मोहब्बत में नाकामी और कामयाबी कोई माने नहीं रखती। हाँ हमें माना नहीं मोहब्बत कोई गाना बहुत वहां अच्छा की जवाब। तो वहां की तो हार भी जीत होती है। लिख लीजिए। तो जबरदस्त डॉक्टर वाकई, साहब आपने क्योंकि एक तजर्बा तो मिल जाता है ना जी। नहीं हार हो जाए जीत हो आप जाए। हजरात बहुत सुनिए, आप हजरात बहुत संजीदा हो गए थे, मैंने आपको गैर संजीदा भी तो करना था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। जी डॉक्टर जी साहब आप खड़ी मैगजीन जो निकाल रहे हैं ये 33 साल तकरीबन 33 इयर्स से आप तकरीबन ये जी जी मैगजीन बिल्कुल। निकाल मजल्ला आपको छाया हो रहा है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में, और इसको जारी ये रखने से मजल्ले को 20 साल बहुत मुश्किल काम है और इसमें अच्छे लिखने वाले लिखते हैं। वैसे एक दरख्वास्त मैं आपसे जरूर करूंगा, सुनने वालों से, आप लोगों से, कि आप में से यहाँ मेरा एड्रेस इनके पास होगा क्योंकि मैंने चीजें भेजी हुई हैं यहाँ, तो मुझसे आप लोग राब्ता रखें और अपनी तहलीकात भी भेजें। तो वो आप तहलीकात दें और आपसे मेरा राब्ता रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप वही लोग हैं जिनकी मैं आज तक तलाश में था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और हमें आपकी तलाश थी। जी, हमने बिल्कुल, आपको इसमें अच्छा ज़ौक़ हुआ। है आपका। शरीक होते रहिए प्रोग्रामों में, आप मुशायरों में और दीगर प्रोग्राम में शामिल होते रहिएगा आप। डॉक्टर साहब आपके तदरीस के मज़ामीन क्या थे? आप किसमें? आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते रहे? मैं तो इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, उर्दू पढ़ाता रहा हूँ। सब्जेक्ट तो यही रहा अच्छा। ना मेरा बुनियादी तौर पे। यूँ CSS के तलबा को मैं हर चीज तैयार कराता रहा हूँ, और PMS मुकाबले के जो हमारे इम्तहान होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये मैं तो 15-20 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक किताब ये एकेडमी अदबियात ने शाया की है, पाकिस्तानी अदब के मेमार, ये जो अभी आपने मुझे किताबें भेजी हैं, कल मेरे पास पहुंची हैं, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़ख़ीम किताब है। इसका फॉन्ट इतना छोटा है कि इस किताब के सफ़ात हैं 266, तकरीबन मुझे लगता है कि ये 400 सफ़ात की 500 सफ़ात की किताब होगी, क्योंकि इसके फॉन्ट बहुत छोटा फॉन्ट रखा गया है। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपकी ये किताब आप पर शाया की गई? तो क्या एहसासात थे आपके? सरकारी सतह पर रिकॉग्नाइज भी मिला है। हाँ, मेरे एहसासात थे कि हाँ कुछ आवाज पहुंची तो है, कुछ आवाज पहुंची तो है। क्या कहना, माशाअल्लाह। और कहाँ पहुंची है, और कहाँ पहुंची है। जहाँ अब आपकी उम्र हो रही है, जिंदगी आपकी आवाज। जी जी बिल्कुल। देखिए ये डॉक्टर साहब का मजल्ला है जो निकालते हैं, इसकी ज़खामत भी आप देख लीजिए, इसका नंबर जहाँ सुनाई नहीं देता आवाज वहाँ। ये आप तो लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये डॉक्टर साहब ने मुझे भेजे हैं, तो इसको आप देखिए कि किस कदर मुश्किल काम है जो 33 साल तक में 33 ईयर्स से ये जारी है। और ये आपका और भी मुजल्ला मेरे पास आया है आपका, और आपके शायरी का मजमुआ मेरे पास से ये एक है जिसमें कुछ चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आज अगर आप मुझे अगर इन अहबाब के मुझे पते मिल जाएं तो ये तमाम किताबें आपको शुक्रिया के साथ भेजी जा सकती। माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, भेज देंगे। एक उम्र होती है रियाजत की और एक उम्र होती है माशाल्लाह 80 साल के करीब आपकी अब उम्र है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि जिंदगी में आपने अपना जो अदब के हवाले से अपनी जिंदगी आपने वक्त की अदब के हवाले से, उसमें आपने बहुत से नशे व फराज आए होंगे, उस हवाले से हमें कुछ बताइए। या जो मुशायरे आपने कभी अटेंड किए या करते रहे, बिल्कुल आपने किए हैं, तो उस हवाले से बताइए। बहुत से मुशायरे आपने अटेंड किए हैं, उनमें जाते रहे हैं, तो ये और इस तरह अखबारात रसाइल तक आपकी शायरी रहे वो सारे मैगजीन। पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं बर्टन रसल जब पढ़ रहा था तो बर्टन रसल ने एक जगह लिखा है कि मैंने 80 साल तक मज़ामीन आवाज चली गई।
लिखते जी और अब अगले 80 साल शॉर्ट स्टोरी इरादे उम्र को तवालत देते हैं। आंसू जिंदगी को बढ़ाती है, बिल्कुल ख्वाहिशें माशाल्लाह। बिल्कुल बढ़ाती हैं। आप में जीने की ख्वाहिश हो तो आप जिंदा रहते हैं, जब जीने की ख्वाहिश मर जाती है तो तभी आप मरते हैं, मगर ना मरते नहीं हैं। अव्वल तो आप मरते ही नहीं। जिन्होंने कुछ कहा होता है, जिन्होंने कुछ कहा होता है, लिखा होता है, वो मरने के बाद ज्यादा जिंदा हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा। इंशाल्लाह। और सवालात पूछ ले बाकी लोग, फिर डॉक्टर साहब से शायरी भी सुनते हैं। आप जितने मर्जी सवाल पूछे, वो बाकी लोग सवाल करते उनके हम नाम इकबाल साहब के हम नाम इकबाल अजीम साहब का शेर जो भूल गया था, इकबाल अजीम साहब का शेर याद आ रहा है, उनके नात जब ये पढ़े थे वो उनकी है वो कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो बसीरत तो बाकी है। मदीना ने देखा है मगर नादीदा नादीदा। वाह 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 वाह, ज़हन से उतर गया था। हमने देखा है मगर नादीदा हो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। इकबाल अजीम साहब बहुत बड़े शायर थे, मगर वो नाबीना 50-52 साल की उम्र में हुए थे। जी जी। जब वो दुनिया की तमाम हुस्न और रानाई अपने अंदर जमा कर चुके। जी जी हाँ बात। और आप ये बात याद रख जी। आपने हजिया उम्रा किया है? हमने क्या कहा? आप हज या उम्रे के लिए तशरीफ ले गए मक्का मदीना मुनव्वरा या मदीना मुनव्वरा? मैं तो अभी नहीं गया, मेरा बेटा और मेरी बहू अब इस साल जा रहे हैं हज के लिए। अच्छा माशाल्लाह। तो हाँ, मैं तो नहीं जा सका। डॉक्टर साहब, अब हम लोग चाह रहे हैं कि आपके अपने जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, उनकी भी अक्कासी करते चले और अपनी खूबसूरत गजलों से महफिल को नवाजें। एक गजल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अभी जान नवाज है मुश्किलें, अभी जान नवाज है मुश्किलें, अभी जिंदगी का जवाब। अभी जान नवाज है मुश्किलें, अभी जिंदगी का जवाब है। क्या कहना? अभी चारा साज है कुल्फतें, अभी जिंदगी का जवाब है। क्या बात है? अभी चारा साज है, अभी चारा साज है कुल्फतें, अभी जिंदगी का जवाब है। जवाब है। जवाब है। वाह गुड, बहुत खूबसूरत। कई फूल हैं जो खिले नहीं, कई हैं जो खिले नहीं, कई हार हैं जो चुभे नहीं। कई फूल हैं जो खिले नहीं, कई हार हैं जो चुभे नहीं। अभी दिल में कितनी है ख्वाहिशें, अभी दिल में कितनी है ख्वाहिशें, अभी जिंदगी का जवाब। क्या दिल में कितनी है ख्वाहिशें, अभी जिंदगी का जवाब है। जिंदगी का जवाब। क्या लतीफ, बहुत खूब जवाब है। किसी हुस्न की कभी शौखियां, किसी हुस्न की कभी शौखियां, किसी इश्क की कभी गर्मियां। क्या बात? किसी हुस्न की कभी शौखियां, किसी इश्क की कभी गर्मियां, सभी दस्तयाब है राहतें, सभी दस्तयाब है राहतें, अभी जिंदगी का जवाब। क्या कहना? क्या अभी जिंदगी का जवाब है। सुनिएगा, मेरा इंतजार किसी को है, मेरा इंतजार किसी का, मेरा इंतजार किसी को है, मुझे इंतजार किसी का है। मेरा इंतजार किसी को है, मुझे इंतजार किसी का है, मुझे इंतजार किसी का है। क्या कहना? कई आहटें कई दस्तकें, कई आहटें कई दस्तकें, अभी जिंदगी का जवाब है। कई आहटें कई दस्तकें, अभी जिंदगी का जवाब है। अभी जिंदगी का तेरी याद है,
वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। वाह वाह वाह। अगला शेर है वाह जी, वाह वाह। कभी तेरे लब के हैं तस्करे, बहुत उम्दा जी। कभी तेरी जुल्फ की याद है, कभी तेरे लब के हैं तस्करे, अभी हो क्या रही बात। है इबादत, वाह अभी हो रही है इबादतें, वाह अभी जिंदगी का जवाब है। और एक शेर है, वाह वाह आहा, आहा। क्या बात है। सुनिएगा, कई फोन आए हैं, कई फोन आए हैं, कई फोन आए हैं, आओ ना, कई दावतों के मिले हैं खत, कई फोन आए हैं, आओ ना, कई दावतों के मिले हैं खत, मेरी मुंतजिर कई महफिलें हैं, मेरी मुंतजिर कई महफिलें। क्या कहना। बहुत अच्छी। वाह, अभी जिंदगी का, अभी जिंदगी का, अभी क्या हूँ मैं, यही जिंदगी अभी का क्या जवाब हूँ है। मैं। क्या खूबसूरत तस्वीर, वाह हाँ, ये जबरदस्त। लोगों को बहुत पसंद, ये रदीफ बहुत पसंद किया गया है। बहुत बहुत खूबसूरत उम्दा रदीफ रदीफ, है। बहुत और उम्दा, शेर है, बड़ी खूबसूरती से बहुत आपने उम्दा। निभाई है माशाल्लाह। क्या बड़े कहना। खूबसूरत जिंदगी का अंदाज से जवाब। आपने जिंदगी के जवाब बयान फरमाए, बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने अपने जज्बात की अक्कासी बहुत बहुत फरमाई। खूब, डॉक्टर, बहुत कोई और बहुत दूसरी जबरदस्त। कोई गजल, कोई और दूसरी गजल भी हम सब सुनना इस चाह रहे हैं। रदीफ में एक पैगाम है। अभी एक दो शेर अभी मोहतरमा और, मेरा ख्याल और है इसके, जारी है, अभी अभी जारी है इस ये रदीफ गजल, में अभी एक जारी पैगाम एक है। दो शेर बाकी हैं। अच्छा जी जी, चलिए, अता फरमाए, अता फरमाए। जी चल। जी मैं पढ़ूं अगला शेर, जी 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 अगला शेर सुनाऊंगा। जी जी, बिल्कुल इरशाद। बिल्कुल, जरूर बताओ जरूर बताओ जरूर सुनना चाहेंगे। चल। अभी क्या है, अभी क्या हूं मैं, ये खुला नहीं, अभी आहा, क्या हूं मैं, ये वाह वाह, खुला नहीं, खुला नहीं। अभी क्या है तू, ये पता नहीं, ये पता नहीं क्या वाह कहना। वाह, अभी अभी वाह क्या हूँ मैं, अभी ये क्या पता हूं नहीं, अभी मैं, क्या है तू, ये खुला नहीं, ये पता अभी नहीं, क्या है तू, ये ये पता पता ये नहीं। पता नहीं, नहीं। मेरे दिल में कितनी है ख्वाहिशें। कहा। हाँ, अभी क्या वाह हूं मैं, हाँ, कभी अभी क्या खुला है नहीं। तू, ये पता नहीं, मेरे दिल में कितनी है हसरतें, अभी जिंदगी जिंदगी का जवाब। क्या कहना। वाह 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 वाह, क्या बात, मेरी वाह शाखे जहाँ है हरी हरी, मेरी ख्वाहिशों वाह की है साहिरी, मेरी वाह ख्वाहिशों की है वाह साहिरी, कई फूल हैं, कई कोपले, कई फूल हैं, कई वाह कोपले, कोपले। अभी जिंदगी वाह। का जवाब है, अभी जिंदगी का जवाब है, जवाब। मेरे दिल क्या में। कहना। वाह, और बहुत अच्छी। और एक शेर और है, ये जरा लंबी हो गई। जी जी, अता फरमाए। अच्छा, चल। जी जी, मेरे दिल में आस का चांद है, मेरे वाह दिल में आस का चांद है, शब तार है तो हुआ करे, क्या कहना। वाह मेरे दिल वाह में आस का चांद है, शब तार है तो हुआ करे, हुआ करे। अभी टिमटिमाती हैं कोशिशें, अभी जिंदगी का जवाब है, क्या क्या अभी बात, कहना। टिमटिमाती हैं वाह वाह कोशिशें, अभी वाह, क्या बात, जिंदगी क्या का बात, क्या बात, जवाब है, वो क्या बात। जिंदगी का जवाब है। रहे क्या शौक बात। में। वाह। और ये गालिबन आखिरी शेर है, रहे शौक में मेरे हम सफर, आहा, रहे वाह, शौक में में मेरे हम मेरे सफर, हम सफर। कभी सुबह है कभी शाम कभी है, शाम है। क्या शाम है। रहे कहना। शौक वाह में वाह, मेरे हम सफर, कभी सुबह है कभी नहीं, शाम कभी है, शाम। शाम है। कभी वाह, शाम है, कभी कभी कुर्बतें, कभी हिजरतें, यही अभी वाह। जिंदगी का जवाब, वाह, क्या कभी बहुत कुर्बतें। वाह 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 वाह, वाह, ये गजल थी एक, क्या तो मैंने आपके सामने पेश की। क्या बहुत बात, खूब। वाह क्या कहना। वाह बहुत वाह बहुत वाह उम्दा, बहुत वाह उम्दा वाह गजल, बहुत वाह खूब, वाह, बहुत खूब। वाह बहुत वाह खूब। वाह। खूबसूरत लतीफ की खूबसूरत गजल, वाह कदर जबरदस्त। इस कदर मुश्किल रदीफ को हाँ, इस खूबसूरती से निभाना माशाल्लाह। जी, बहुत बड़ी बात है। ये और समझिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत उम्दा, बहुत उम्दा कही, बहुत निभाया, उम्दा। और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। क्या माशाल्लाह। बात, जबरदस्त बस रदीफ में एक पैगाम है। जबरदस्त। माशाल्लाह। भी जिंदगी का जवाब है। को निभा रहे क्या थे कहना। डॉक्टर
शेख इकबाल साहब, हम मुल्तमिस हैं कि एक और गजल पेश करिए। और हमारे साथ मेरे ख्याल है नुसरत नायाब साहब और AR सागर साहब की विंडो बंद है, शायद शामिल है। अगर वो लोग भी सवालात के पैनल में अपना सवाल तैयार रखें तो हम उनकी गजल सुनने के बाद डॉक्टर साहब से, आप लोगों से भी सवाल करते हैं। नुसरत याब साहब और AR सागर साहब अपनी विंडो खोल लें। जी नवाज नुसरत, ये इनके यहाँ ये खिड़कियां खुलेंगी तो बात बनेगी। जी नजर आएंगे तो जी 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 नुसरत याब साहब ने तो मैंने खिड़की खोल ली है। खिड़की खोल ली। जी 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 आपकी चंद खिड़की शान बहुत और अच्छी है। अता कीजिए। सुनिए, चंद अशार और सुना देता हूँ आपको। हिम्मत आली को मैं बेबालों पर अच्छा लगा, वाह हिम्मत आली को मैं बेबालों पर अच्छा लगा, बालों पर आंसुओं में मुस्कुराने का हुनर अच्छा लगा, क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह बात है, आंसुओं में वाह, वाह। मुस्कुराने का क्या हुनर उम्दा है, क्या उम्दा है, अच्छा क्या लगा। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत खूब। और शेर है, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे मंजिलों की बात छोड़ो किसने वाह पाई मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर, हाँ क्या डॉक्टर कह साहब रहे बड़ा हैं, वाह, वाह, वाह वाह। वाह वाह, मंजिलों की बात मुकर्रर छोड़ो, फरमाया जी, मुकर्रर। वाह वाह, बहुत शेर है ये। मंजिलों की किसने बात पाई छोड़ो, मंजिलें। वाह वाह नॉट वाह टॉक ऑफ द गोल्स, मंजिलों वाह की वाह, बात बात छोड़ो छोड़ो, किसने बात पाई छोड़ो मंजिलें, किसने पाई एक मंजिल, सफर अच्छा, क्या हाँ कह रहे किसने हैं, पाई हम सफर मंजिलें, अच्छा लगा, क्या कह रहे हैं, वाह एक सफर अच्छा लगा, एक हम एक हम सफर सफर वाह, अच्छा लगा, क्या कह एक रहे हम एक सफर सफर अच्छा लगा। हैं। ये बड़ा सोच मशहूर कर शेर। मैंने चुन, वाह 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 मैं ये बड़ा बहुत मशहूर, खूबसूरत शेर। हाँ, वाह वाह, जी जी बहुत खूबसूरत शेर। वाह वाह, और इसका एक और शेर उम्मीद मुझे जगाने वाला। याद आ रहा है वाह जी, वाह वाह और वाह वाह सोच कर मैंने चुनी है वाह आखिरी वाह, कमाल आरामगाह, कमाल, बहुत खूब। सोच कर वाह मैंने चुनी है आखिरी आरामगाह, क्या मैं कह था रहे हैं, मट्टी और मुझे मट्टी का घर अच्छा लगा, क्या कह रहे क्या हैं, बात मैं था है, मट्टी वाह बात सुभान अल्लाह, क्या कह और रहे हैं, मुझे क्या बात, मट्टी क्या का बात, ठीक है, वाह घर मट्टी अच्छा का वाह लगा, घर वाह, क्या अच्छा कह रहे लगा। घर अच्छा लगा। क्या अच्छा कह रहे लगा, हैं, और एक शेर है, आबसी जो आंख में सूरत दिलो जा बन गई, वाह आबसी जो वाह आंख अब में तो सूरत आँख दिलो जा वाह बन गई, जो लगा अच्छा मुझे वो उम्र भर अच्छा लगा, वाह वाह, जो वाह, लगा वाह, अच्छा वाह, मुझे जो क्या लगा बात, वो बहुत उम्र अच्छी। भर, उम्र भर अच्छा, ये चंद माशा ये क्या चंद बात अशार है। थे। क्या वाह बात, वाह, बहुत खूबसूरत हम अशार थे सफर डॉक्टर। अच्छा लगा। एक बार फिर ये शेर अता फरमाइए जी जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मंजिलों खूब। की कौन बात सा? छोड़ो किसने पाई मंजिलें। वाह हाँ, वाह वाह मंजिलों की बात छोड़ो, ये एक्चुअली वाह ये वाह, बड़े पाई काइडियोलॉजिकल है, अरे बहुत खूब, मंजिलें किसको मिलती है, उम्मीद कोशिश जगाने बड़ी वाला। चीज होती है, वाह 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 वाह, मंजिलों की क्या बात बात, छोड़ो किसने पाई वाह मंजिलें, एक सफर वाह अच्छा वाह लगा, वाह एक हम सफर अच्छा लगा, क्या जो कह जो रहे वक्त हैं, वाह क्या वाह, कहीं बहुत गुजर खूब। गया वो बहुत खूब, बड़ा अच्छा वक्त गुजर वाह गया, आपके साथ बहुत ये आज वाह की वाह वाह शाम वाह, बहुत अच्छी लगी, क्या बात, माशाल्लाह। माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत क्या बात, अशार बहुत से हम लोग खूब, महसूस बहुत हुए, खूब। बहुत उम्दा, बहुत वाह उम्दा। बहुत जी जबरदस्त। हमारे साथ नुसरत याब साहब मौजूद हैं, हमारी अदबी दुनिया का एक रोशन सितारा है। मोहतरम जनाब नुसरत याब साहब, मैं मुल्तमिस हूँ आपसे कि आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर शेख इकबाल साहब से सवाल पूछिए, आपके जहन में क्या है? आदाब अर्ज़ है तमाम शुरकाए महफिल को। मैं अभी आदाब अभी हुजूर। क्योंकि शामिल हुआ हूं, कुछ मेरी बीमार कुर्सी को कुछ लोग आए हुए थे, मैं ताखीर से शामिल हुआ। अल्लाह पाक तो सेहत कामिल अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा बस शफ़ा वो गुर्दे में थोड़ी सी पथरी है छोटी सी, वो इंशाल्लाह होम्योपैथिक का इलाज जारी हो कर दिया इंशाल्लाह। आप पानी अल्लाह ज्यादा के फजल से पानी इंशाल्लाह ज्यादा उसमें पिया कामयाबी करें पाएंगे जी, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जरूर। मुझे हम इनसे ये पूछते हैं कि गजल जो पहले हुआ करती थी, जो जिसको गजल कहते हैं, और अब जो जी गजल है, इसमें ये क्या फर्क देख रहे हैं? क्योंकि एक जमाना इन्होंने देखा जो असल जो गजल का जो एक हैयत थी, जो मफहूम था, जो उसका तकाजा था, अब उसमें जिद्दत शामिल करके
उसमें कुछ अंग्रेजी के अल्फाज शामिल करके मौज़ूआत को बिल्कुल दूसरी तरफ ले जाकर, तो आप इसको कैसे देखें, क्या समझते हैं आप इसमें? क्या आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर से एक सादा सा जवाब ये भी है कि जो 100 साल के इंसान में और अब के इंसान में फर्क है, वही 100 साल पहले की जुबान आज की जुबान। बहुत क्या बात है, क्या बात है। बेशक बिल्कुल, ये टाइम ये तब्दीलियां लाते हैं। उस वक्त वो तेरा कोठे पे रंगे पाँव आना याद है। अब पहुंच जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल है आपके पास, अब तो मोबाइल पे आएंगे, मोबाइल पर आप हाँ, खतो किताबत भी खत्म हो चुकी है, इसलिए मोबाइल पर कबूतर के गले में खत नहीं डालना पड़ता। अब आपको इश्क में आसानियां पैदा, हाँ, अदब जो है वो अपने हाथ का तर्जुमान भी आ गई सब माशाल्लाह से। और ये कि पहले जो होती थी शायरी, वो एक गजल का मकसद नहीं था कि औरत से बात करना, या वो और गजल औरत की खूबसूरती और हुस्न से तकाजा करती थी गजल हमेशा, लेकिन मकसदियत भी शामिल हुई गजल में। उसका जो कहते हैं वसत बढ़ गई, बहुत ज्यादा वसत और अब तो औरतें मर्दों से बात हाँ, बेशक जी मैं ही आपका सहरा जी इसलिए वो बन गया 2 गजला और 100 गजला। आप हजरात से अपनी जरूरत रज़ाना की माफी भी चाहता हूँ। मैं बात बड़े ओपनली बात कह जाता हूँ, ये मेरी आदत रही है। बहुत अच्छी बात है जनाब, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने सबके जवाब भी दिए और माशाल्लाह खूबसूरत गजलें पेश की। हम सब तो आपकी रूबरू हो के और आपकी जैसी अजीम शख्सियत को अपने दिल की गहराइयों से हम सब मिलके सलाम पेश करते हैं, अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं कि जब अपना काफिला पूछना चाहे तो एक आध सवाल और। डॉक्टर साहब ये तो बताइए, आपकी ये शायरी और बाकी दीगर तख्लीकात हैं, वो तो खैर तहकीक और तनकीद और दूसरे मौज़ूआत बहुत से हैं, आपकी अफसाना निगारी भी है। आपके घर में हौसला अफजाई होती है, इसकी पजीराई होती है? घर से मुराद आपके बहन भाई भी, और फिर उसके बाद आपके बच्चे और आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं। और खास तौर पे हम जोर दे रहे हैं मेरी बीवी तो जो होती है, मैं जब सुनाने लगता हूँ वो कहती है पहले मुझे बर्फी खाओ, उसके बाद एक चीज। घर में आम तौर पे शायर की पजीराई नहीं होती, लेकिन मेरी बेटी शेर कहती है, मेरी बेटी शेर कहती है, और मेरे बच्चे मुझे ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। आई लव माई चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन लव मी। और मेरी बीवी ने मेरे लिए कभी इस तरह की कोई मुश्किल पैदा नहीं। She lets me do whatever I like। माशाअल्लाह। तो खुदा का शुक्र है, तो अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियां दी हुई हैं। खुशनसीब है आप, माशाअल्लाह। बस उसका कर्म है। खुशनसीब है। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आप नई नस्ल को देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? आपकी जिंदगी के इतने तजुर्बात हैं, उस हवाले से कोई और गुफ्तगू आपकी रह गई हो, बातचीत रह गई हो, वो भी इसका भी जिक्र करें, और अगली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और फिर शायरी के हवाले से भी अगर कोई मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं। अगली नस्ल को मैं जी देखिए, मैं पैगाम तो यही दे सकता हूँ अपने आप से भी और दूसरे, इंसान बने इंसान। हमने इंसान बनना छोड़ दिया है। क्या बात है। We are no longer human beings. We have become brutes। आप जानते हैं, हम हर वक्त दौलत के पीछे दौड़े होते जी, और जाओ हश्म के पीछे दौड़े होते, ओहदों के पीछे दौड़े होते, और ये मालूम नहीं कि एक लम्हे में इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। मैन इज द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। जो बंदों की इज्जत करता है, प्यार करता है, खुदा उससे प्यार करता है। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या कह मेरा पैगाम तो यही है। मेरा पैगाम मोहब्बत है,
जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है डॉक्टर, मैं बहुत ममनून हूँ आपका, आपने मुझे इतना वक्त दिया है मुझे, और इतनी मोहब्बत से मेरी बातें सुनी हैं, बड़ी तवज्जो से सुनी हैं। मेरा ख्याल है इससे पहले शायद मैंने कोई ऐसी महफिल अटेंड की हो जहाँ इतनी तवज्जो से बातें सुनी गई। ये शायद इसलिए कि हम फासले से बैठे हैं, जब हम फासलों पे होते हैं तो शायद बात सुन लेते हैं, जब करीब होते हैं नहीं सुनते। ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो आप मतलब कहते हैं ना कि हमने कहानियों में और किताबों में और अफसानों में तो हीरोज देखे थे, अपनी जिंदगी में पढ़ते रहते हैं। हमारी फिल्मी दुनिया के हीरो भी जो बेहकीकत होते हैं, बिल्कुल नुमाइशी हीरो। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा हीरो मौजूद था जिसने बिनाई से महरूमी के बावजूद ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिससे हम सबके दिलों को मुसक्कर कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर राब्ते में रहेंगे और अपने प्रोग्रामों में आपको मैं इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में शिरकत करता रहूंगा। और ये भी मेरे ख्याल आप इसे अपने YouTube में डाल देंगे ये प्रोग्राम, तो ये तमाम ताकि लोगों तक पहुंचता चला जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सुनने को मिला, बहुत अच्छे गिरा कदर बातें सुनने को मिली। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब ने अपने गजलें शेयर की, जो आपके बहुत मजुल्लों का इंतजार रहेगा। उनको मदू कीजिएगा। लियाना साहब से मैंने पूछा था, लेकिन मेरे ख्याल है वो उठ के चले गए हैं बेबी ना, उन तक मेरी आवाज नहीं गई। आप जैसे भी हो अपने के साथ आ गए हैं नवाज भाई, अपने ख्यालात के साथ जी। नवाज भाई अपने ख्यालात के साथ फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सॉरी मैं पहले सुन नहीं सका, तो प्रोग्राम तो मैं सारा सुन रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को, शेख इकबाल साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस हालत में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी और हम सब के लिए एक मिसाल कायम की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनको मजीद कामयाबियां दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत सागर साहब जो बनते हैं, सागर साहब जी मैं माजरत खा हूँ, मैं चिलमन चुबारे से ही बात कर सकता हूँ, खिड़की नहीं खोल सकता। डॉक्टर साहब का सारा प्रोग्राम सुना, माशाल्लाह बहुत मजा आया। बस डॉक्टर साहब हमारे लिए मशाल राह है, हमारी बहुत सारी दिली दुआएं और नेक तमन्ना इनके साथ हैं। इनसे बस एक गुजारिश करूंगा कि अपना शेर दोबारा सुना दें, मंजिलों की बात छोड़ें, ये दोबारा सुना दें। शेर ज़ुबान से मंजिलों की बात छोड़ो, थोड़ा सा कलाम और मंजिलों की बात छोड़ो, वाह मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें। अरे वाह, सफर अच्छा छोड़ो सफर। अरे वाह, अरे वाह, बहुत शुक्रिया हजूर। बहुत खूबसूरत शेर, ये शेर बस इस शेर हो जाते हैं। हमने तो ये सुना था और खूबसूरत अशार जो आपको बहुत पसंद हो जी, अशार हम सब सुनना चाह रहे हैं। ये आपके बहुत पसंदीदा अशार जो आपको बहुत पसंद हो वो हम सब सुनना चाह रहे हैं। हाँ, एक शेर बहुत मकबूल हुआ है, एक शेर बहुत मकबूल हुआ है मेरा। तेरे वजूद की नस नस से आंख झांकेगी, तेरे वजूद की नस नस से आंख झांकेगी। जी, तेरे वजूद की नस नस से आंख झांकेगी। अगर है ज़ौक़े तमाशा नजर की बात न कर, तेरे है ज़ौक़े तमाशा नजर की बात, ज़ौक़े तमाशा नजर की बात, वजूद की नस से आंख, क्या कह अगर है ज़ौक़े तमाशा नजर की बात न कर, क्या कहना। आप पे देखने का ज़ौक़ होना चाहिए, तमाशा होने लगता है। क्या बात है, आप में देखने का ज़ौक़ होना चाहिए। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़ौक़ होना चाहिए। हमने तो अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और जाने उधारी दी हुई है, कर्ज दी हुई है, कभी किसी को कभी किसी को। हमने अपने हर उज़्व को बेच दिया हुआ है, वो हमारा अपना रहा ही नहीं।
बस ये बदकिस्मती है कि इस कमर्शियल एज में हम एक रोबोट बनकर रह गए हैं, पुर्जा बन के रह गए। बिल्कुल काश सही के कह ऐसा रहे ना हो, हैं। और काश के सब लोग ऐसे हों जैसे अब यहाँ बैठे हैं। हमारा तो जी चाहता है रोज आपसे ऐसे महफिल हो, रोज ऐसे महफिल हो आपके साथ। माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, आपकी बातें सुनकर। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस खूबसूरत शेर के साथ। कौन बोल रही है? मैं तबस्सुम अलवी जी आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। जी जी इंटरव्यू तबस्सुम मोहसिन अलवी मेरा जी जी। अच्छा, मैं यही चाहूंगा कि ये अहबाब जो है अपने आप के जरिए अपने एड्रेसेस मुझे भेजें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर भेजेंगे आपको। भेजेंगे हुजूर। जी जरूर इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रखेंगे। सामीन प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं खूबसूरत शेर के साथ कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। क्या बात, वहीं से निकलेगा। वाह, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वहीं से निकलेगा। बहुत खूब। दो सवाल पढ़ती हूँ डॉक्टर साहब के आखिर में, 2 शेर में पढ़ती हूँ डॉक्टर साहब के 2 शेर में आखिर में पढ़ती हूँ। मैं किस फूल कॉलर में टाकूं, मुझे दिलदारों ने मार डाला। वाह। मैं पाँव पे चल ही रहा था, मुझे बैसाखियों ने मार डाला। मैं पाँव पे चल ही रहा था, मुझे बैसाखियों ने मार डाला। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब ने भी अपना रास्ता, अपनी मंजिल ढूंढ ली और इंशाल्लाह ताला हम सबको, हम सब डॉक्टर साहब के साथ मकसद करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जुस्तुजे शौक को हमेशा सलामत रखे, आपके इल्म में इजाफा, आपको कुशादा बशीर बदर का एक शेर है, बशीर बदर साहब का एक शेर है इस मौजू पे। उजाले अपनी यादों में। बशीर बदर साहब का एक शेर है इस मौजू पर। उजाले अपनी यादों पे हमारे साथ रह जाने इस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बिल्कुल सुनना चाहिए, वो सारे सुना रहे हैं। जी जी फैयाज भाई आप अपना। बशीर बदर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात। दुआ कीजिए, रास्ता हो जाएगा। उनके लिए दुआ कीजिए, मसाइल पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और ऐसे ही इंशाल्लाह हम अपने मेहमानों को, ऐसे ही मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का से गुफ्तगू में आप सबको शामिल रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा अपने महफूज साहिबानों में रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों की बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहबा। खूबसूरत महफिल में शिरकत का मौका अता करने पर बहुत शुक्रिया। बेबी साहिबा और तबस्सुम साहिबा और महसन साहब और फूल साहब और आज के मेहमान डॉक्टर साहब, अल्लाह सबको बहुत शुक्रिया। फैयाज वर्दा कुवैत से। तबस्सुम साहिबा बहुत अच्छा आपने निजामत भी की और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग थे सबने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत मुदल्लिल बातें की, बहुत जामे बातें की। और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह